એક પેપરમાંથી સુવિધા શરૂઆતનું પહેલું પેપર તો તેમાં પણ બે છે. એટલે એક છે તે મેટ્રાઇસિસનો ને એક ડિટર્મિનનો. દરેક વખતે આવે છે, ભાગ્યે જ કોઈ શરત ચૂક હોય છે એ લોકોને. એટલે તમને કહું છું કે આ બે સમ કમ્પલસરી એક સમ જે ડબલઈમાં હોય જ. યસ એટલે સર. હા, એટલે આના સમ બી વધશે આપણા. પહેલામાં 25-26 જ સમ થયેલા છે, આની અંદર ઘણા વધશે. અત્યારે હું 29 સુધી તો સમ પહોંચી ગયો છું ગણતા ગણતા. તમને એમાંના મેં 14 પેજ મોકલેલા છે આજે 1 to 14. હા સર. હા, એટલે 17 સમ સુધીનું સોલ્યુશન એક પીડીએફ બનાવીને મોકલી છે. પછી બીજા આવશે, આમ આગળ ચાલુ રહેશે. બરાબર છે. ચાલો ફર્સ્ટ સેમની વાત કરીએ. તો ઈ પી ઇક્વલ ટુ મેટ્રિક્સ ગીવન 1 alpha 3 1 3 3 2 4 4 is the adjoint of 3 by 3 matrix A. એટલે what matrix P is adjoint of A. मतलब के if you write P, then what we write P equal to adjoint A. And determinant A is equal to 4 given. The question is then alpha is equal to what? એટલે in matrix alpha unknown figure, the question is what alpha. In Yes. this sum, very easy work. Determinant A given 4. And what your matrix P is nothing but adjoint A. And you know relation between determinant adjoint A and determinant A. Last year you have relation between what? Determinant of adjoint A and simply not last year, I think this year we have in our chapter matrices and determinant. If you remember, if matrix A is of 3 by 3 order matrix, all of you try to remember matrix of order 3 by 3, then determinant of adjoint A equal to what? Determinant A square. Determinant A square. याद होना Yes ही sir. चाहिए. General formula Yes is sir. what? If matrix A is order n by n, then determinant of adjoint A is determinant A to the power n minus 1. 1 powerless. જેટલા બાય જેટલાની મેટ્રિક્સ હોય તેના કરતા એક પાવર ઓછો આવે, આટલું યાદ રાખવાનું. બોલો Yes સમજાય? sir. જરા હવે સોલ્યુશન પર આગળ વધીએ. પંકજ જરા ઉપર જવા દે. हाँ જો here given that P is adjoint A. બરાબર છે? P બરાબર adjoint A. Now we take both side determinant. So determinant P equal to determinant of adjoint A, right? Yes, no. यस सर When determinant P equal to, I write determinant A square. The reason because for 3 by 3 matrix A, આ ટાઈપની ફિલિંગ ધ બ્લેન્ક બી હતી MCQ, તમને યાદ હોય તો. ડિટર્મિનન્ટ ઓફ એડજોઇન્ટ શુડ બી ડિટર્મિનન્ટ A સ્ક્વેર. યાદ આવે છે? જનરલાઇઝ બી મેં કરાવ્યું, તમારે વાંચવાનું પડે. જે તમારા ચેપ્ટર પટે છે તેનો સ્ટડી નહીં હોય તો અહીંયા નહીં આવડે. હંમેશા Yes. યાદ રાખજો, GEE શીખવા માટે તમારું બેઝિક નોલેજ તો જોઈએ. તમારું બેઝિક નોલેજ વીક હોય તો અહીંયા નહીં મેળ પડે. તમને આ Yes બધું sir. વર્ક ડિટર્મિનન્ટ એડજોઇન્ટ એ બરાબર ડિટર્મિનન્ટ એ સ્ક્વેર એ આપણે ત્યાં કરાવેલું છે. એ જો યાદ હોય તો આ દાખલો બહુ સિમ્પલ બની ગયો. જુઓ, determinant P is equal to determinant A square, and determinant A already given in your data 4 value. It means that determinant A square is 16. So now only left side determinant A, determinant P, that is 1 alpha 3 1 3 3 2 4 4 is equal to right side value known 16. So if you simplify, you will get alpha. Is it or Yes not? sir. So Yes now we sir. use look. यस सर Proceed. આગળ વધો જરાક ઉપર જવા દે ભાઈ. તું અંદર નજર રાખતો રે પંકજ. હું જ્યાં અટકું ત્યાંથી પછી ઉપર જવા દે. મારી રાહ નહીં જોયા કર. મારા 11th સ્ટાન્ડર્ડમાં એક છોકરો છે, હે જય. એને મારે નથી કહેવું પડતું. બોલ, ફટાફટ એ જાણે કે સાહેબ અહીંયા આવી ગયા, મારે ધીરજથી ઉપર લેવું જ જોઈએ. તને મારે વારે વારે ટોકવો પડે છે. એનો અર્થ કે તારું ધ્યાન નથી. 1 into bracket, જો સિમ્પ્લિફાઈ કરું છું ડિટર્મિનન્ટ નો, 1 into 12 minus 12 એટલે 0. Then minus alpha into 4 minus 6 minus 2, है ना?
plus 3 Yes, sir. plus 3 into 4 minus 6 minus 2 and other side 12. Now you check 1 into 0 0, then minus minus plus 2 alpha and minus 6 joint other side 16 plus 6 22. So alpha will be 11. બોલો 4 માર્ક મફતના Yes, મળી ગયા. કરેક્ટ ઓપ્શન બી. જરા બી દિમાગ Yes. નથી ચલાવવાનું, એકદમ સિમ્પલ. આ 4 સર, માર્કનો yes, sir. ક્વેશ્ચન. હા બોલો. બોલો રાજનો ફોન સ્વિચ ઓફ થઈ ગયેલો. કોનો? રાજનો. આવી ગયો ને? નથી આવતો, નથી આવ્યો. હવે રાય આવ્યો, રાય. રાજ આવી રાજન. ગયો. હા हाँ રાજ सर આવી ગયો, રાજ આવી ગયો, રાય બી આવી ગયો. વેરી ગુડ, વેરી ગુડ. ઓલ આર પ્રેઝન્ટ. ભાઈ યસ ફર્સ્ટ સમ સર. થઈ ગયો, બહુ સિમ્પલ છે, જોઈ લેજો, આવી જશે. હવે સેકન્ડ સ્ટાર્ટ કરીએ કે ફર્સ્ટ સમજવો છે? હજુ હમણાં જોઈન્ટ થયા, જલ્દી જલ્દી જોઈ લો. ચાલો હું सर બતાવી ये દઉં. तो ચાલો आ गया है फर्स्ट आ बहुत गया ना? इजी था समझ में आ गया ना? ओके ओके, तो जाने दे भाई पंकज, अपना सेकंड ले ले. ओके. द नंबर ऑफ वैल्यूज ऑफ की, नंबर ऑफ वैल्यूज ऑफ की for which the system of equations has no solution. જો આ સિસ્ટમ ઓફ ઇક્વેશન પર બહુ સમ આવે છે ભાઈ. દરેક મેં જોયું દરેક પેપરમાં લિનિયર સિસ્ટમ ઓફ લિનિયર ઇક્વેશનના સોલ્યુશન પર ક્વેશ્ચન હોય ને હોય જ છે. તમે અત્યારે બી જોશો, આપણે ગણતા જઈશું, એક સમ ઓટોમેટિક આવીને ઊભો રહેશે. તો એમાં ખાસ યાદ રાખવાનું શું છે બધું, જ્યાં જ્યાં જરૂર, દરેક સમ જુદા જુદા પ્રકારના હોય છે. હું અહીંયા બધું લખતો બી જવા, જે તમારે મેમરી રાઇઝ કરવાનું છે તે યાદ યસ. બી રાખજો. જો અત્યારે તમને બે ઇક્વેશન આપ્યા છે, linear equation in two variable x and y. The question is what? If the number of values of k, number of values of k means how many k's possible for which this system has no solution. So I have written answer. Look at here, from given equation, for system of equation has no solution, delta should be 0. Delta means determinant should be 0. What determinant? Delta. जरा एक नोटबुक लो ने, जरा હું લખાઉં તે લખો. Okay, sir. હા, તો કે એમાં લખશો તો તમને ક્લિયર થશે. સર બોલો. હા, લખો ફર્સ્ટ લિનિયર ઇક્વેશન ax પ્લસ by ઇક્વલ ટુ c. સેકન્ડ ઇક્વેશન લખો. હા, પેલા a1 b1 લખી દેજો. હે, કારણ કે આપણે બે ઇક્વેશન લખવાના ને. a1x પ્લસ b1y इक्वल टू c1 लिखा. फिर a2x, Okay. फिर a2x प्लस b2y इक्वल टू c2. આવા બે ઇક્વેશન માનો કે તમને આપ્યા છે, બરાબર? હેલો. હા, તો what is meaning of delta એ ખાલી સમજવાનું છે. Delta is determinant of order 2 by 2 of coefficient of x and y. જુઓ, પહેલા હું લખાવી દઉં, ડિટર્મિનન્ટ ની સાઇન પાડો. એમાં x નો કોએફિશિયન્ટ પહેલા ઇક્વેશનમાં જુઓ a1, બીજા Yes, પહેલા જ sir. ઇક્વેશનમાં y નો કોએફિશિયન્ટ b1, તો a1 b1 અને a2 b2. Beat. આ ડેલ્ટા સમજ પડી ગઈ વાત? ડેલ્ટા જ્યારે બોલું Yes, તો આ sir. અર્થ સમજવાનો. અચ્છા, હવે ડેલ્ટા વન નો મતલબ એક્સ વાળી લાઈન ઢાંકી દો. આપણે ક્રેમર રૂલ્સ થી સોલ્વ કરતા હતા ને તેવું એક્સ લાઈન ક્લોઝ કરી દઉં અને હવે કોએફિશિયન્ટ લખો તો b1 c1 b2 c2 આ પ્રમાણે. હવે ડેલ્ટા Okay. ટુ લખો, ડેલ્ટા ટુ તો બી વાય વાળી લાઈન ક્લોઝ કરીને વાંચો. બાકીના એક્સ ના અને કોન્સ્ટન્ટ ના કોએફિશિયન્ટ લખો તો a1 c1 a2 c2. ક્લિયર? Yes, sir. હા, આ જે છે તે તમારા ટુ લિનિયર ઇક્વેશન. વેનેવર વી હેવ થ્રી લિનિયર ઇક્વેશન ઇન થ્રી વેરિયેબલ એટલે એક્સ વાય ઝેડ, ધેન ઓલ્સો સિમિલર ટાઈપ ડેલ્ટા, ડેલ્ટા 1 ડેલ્ટા 2 અને ડેલ્ટા 3 આવશે. અચ્છા, તો હવે અહીંયા જે મેં ડેલ્ટા કયો, ડેલ્ટા 1 કયો, ડેલ્ટા 2 ક્લિયર થઈ ગયું બધું? हाँ sir. Thank you. હા, તો look at condition. For system of equation has no solution,
डेल्टा शुड बी जीरो एंड डेल्टा वन और डेल्टा टू एटलीस्ट वन मस्ट नॉट बी जीरो, ये होना चाहिए। अगर आपको सॉल्यूशन नहीं है इक्वेशन का तो डेल्टा क्या होना चाहिए, जीरो, અને डेल्टा वन और डेल्टा टू दोनों में से कम एक नॉन जीरो होना चाहिए। तो जरा ऊपर जाने दे, डेल्टा कैसे निकालें हम, डेल्टा इक्वल टू, तो देखो वो इक्वेशन में नजर करो, क्वेश्चन में दिखा रहा है, इक्वेशन दिखाई रहा है, तो उसमें से बोलो डेल्टा वन क्या आएगा, डेल्टा डेल्टा की बात करूं, डेल्टा क्या आएगा, सर तो फर्स्ट वहां रो रहेगी k+1 और 8, 8 एंड दूसरी लाइन के टू k थ्री। और k+3। अच्छा, उसका सिंप्लीफाई मैंने कर दिया, देखो हाँ के सर, क्रॉस प्लस करेंगे वन, तो हाँ वो आ गया, के स्क्वायर प्लस 4k+3 -8k, वो आप चेक भी कर 4 सकते हैं। - 8 के -4। हाँ, तो के स्क्वायर -4k+3 हुआ, और उसका दो फैक्टर k-3 k-1 आया, देख लो बराबर। हाँ सर। तो ये डेल्टा की वैल्यू आई, बराबर, ये डेल्टा की वैल्यू आई। आप समझ सकते हैं कि अगर डेल्टा जीरो चाहिए तो k3 या तो k1 होना चाहिए, बराबर है, ये Yes. बाद में सोचेंगे। अभी डेल्टा वन की कैलकुलेशन करें तो वो एक्स वाली लाइन मैंने ढंक दी और बाकी का एलिमेंट लिखा, क्या लिखा, देखो मानो कि वाई वाली लाइन ढंक दी, तो k+1 4k एंड k 3k-1, ऐसा मैंने बना दिया, बोलो बराबर है। यस सर। वाई वाली लाइन किसी को भी एक लाइन को ढक के बाकी का लिखो, वो भी लिख सकते थे, उसका भी कैलकुलेशन सेम आएगा। मैंने वाई वाली लाइन ढक दी, ऐसा समझो। तो k+1 4k एंड 3k-1 आया, बराबर, देख लिया। इसका हाँ सिंप्लीफिकेशन देखो, देखो Yes. क्या आया, -k-1 होल स्क्वायर आ गया बाद में। सिंप्लीफाई करके आप देख सकते हैं अपने तरीके से, देखो कोई गड़बड़ी है नहीं, हाँ मैंने सर, बहुत ठीक तरह से गिना है। सही। आगे जाने दो, आगे बढ़ाओ भाई पेज। पंकज गायब हो गया। हाँ बस, अब क्या हुआ, तीसरा पेज, दूसरा पेज पे आएगा, देखो। हाँ, डेल्टा टू ले लिया, तो डेल्टा टू वाला क्या आएगा, 8 4k, बस बस रुको, k+3 3k-1, उसका कैलकुलेशन करके मैंने बताया k-2 k-1 एंड बाहर -4, ये तो सब कैलकुलेशन की बात है, वो आप कर सकते हैं। अब मैं क्या बोलूं, डेल्टा जीरो कब होगा, तो वो दिखाई रहा है k3 और k1 होगा, बट व्हेन आई टेक k1 तो डेल्टा वन डेल्टा टू बोथ आर जीरो, देखो डेल्टा टू की वैल्यू -4 ऑफ k-2 k-1 है, तो वहां हम k1 लिखने जाएंगे तो जीरो हो जाएगा कि नहीं, हाँ सर, बराबर है। जीरो हो जाएगा, फिर हाँ पूरा टर्म बराबर है जीरो हो जाएगा। पंकज, हाँ ऐसा ही कर्सर घुमाओ डेल्टा वन की ऊपर, डेल्टा वन में जाने दे, ऊपर 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 जाने दे। हाँ डेल्टा वन, देखो इसमें फैक्टर आया था k-1 का होल स्क्वायर, तो वहां भी हम k1 लिख देंगे तो 1 जीरो हो - 1 जाएगा। 0, 0 का होल स्क्वायर 0। हाँ, तो हमको क्या चाहिए, डेल्टा तो जीरो ही चाहिए, लेकिन डेल्टा वन डेल्टा टू दोनों में से कम एक जीरो नहीं होना चाहिए, तभी हम नो सॉल्यूशन बोलेंगे। तो यहाँ क्या हुआ, डेल्टा वन डेल्टा टू के बराबर वन क्या, अगर दोनों जीरो हो गया और डेल्टा तो ऑलरेडी जीरो है, तो ये इनफाइनाइट सॉल्यूशन हो गया। तो हमको चाहिए नो सॉल्यूशन, तो मैंने लिखा है, देखो लाइन सुनो, but when k equal to 1 then delta 1 delta 2 both are 0, therefore k equal to 1 is not acceptable, ये स्वीकार्य नहीं है। क्यों नहीं एक्सेप्टेबल है, अगर k1 लिखने जाओ तो नो सॉल्यूशन की बात रहती नहीं है, इनफाइनाइट सॉल्यूशन आ जाता है। तो k बराबर 3 की बात करो, वहां डेल्टा बराबर जीरो में से k बराबर 3 भी आया था ना, k और 3 और k1 दो फैक्टर आया था डेल्टा में, देख लो ऊपर। हाँ, यस सर। तो उसको जीरो लेने से k3 और k1 दो आती है वैल्यू, तो k की डबल वैल्यू में एक वैल्यू तो फेल हो गई, अब दूसरी वैल्यू लिखने जाए, डेल्टा वन में लिख के चेक कर लो, 3 लिख दिया तो 3 यहाँ - 2। 4 आएगा, यहाँ भी 3 लिखोगे तो जीरो नहीं आने वाला है। तो हाँ दोनों को दोनों डेल्टा वन डेल्टा टू कम से कम एक नॉन जीरो आना चाहिए, यहाँ तो दोनों के दोनों नॉन जीरो आ रहा है, तो मैंने बताया देखो, बट हाँ therefore k बराबर 3 is the correct value of k, therefore the no of well number of values, हाँ k बराबर 3 एक करेक्ट हो गया, क्योंकि 1 नहीं आया, इसका मतलब k बराबर 3 आया, मैंने चेक करके भी आपको बता दिया, डेल्टा वन डेल्टा टू जीरो नहीं आता है, तो ये k बराबर 3 होगा, देन आवर सिस्टम ऑफ इक्वेशन हैज नो सॉल्यूशन, ऐसा इसका मीनिंग निकलता है।
तो हाउ मेनी, तो आंसर सभी बच्चे क्या लिख देते हैं कि आंसर 3 पे टिक कर देते, तो वो गलत है। a बराबर 3 का मतलब नंबर ऑफ वैल्यूज ऑफ k कितनी आई, सिंपल 1 ही आई। therefore the number of values of k for which the given system of equation has no solution is 1। तुमने संख्या पूछी जे हाउ मेनी नंबर्स ऑफ सॉल्यूशन ऑफ के, ऐसा पूछा गया है क्वेश्चन में, देखो पढ़ो क्वेश्चन। हाँ क्वेश्चन में देखो क्या क्वेश्चन दिया गया है, ऊपर जाने दे अजू, आने दे आने दे। देखो ऊपर लिखा है कि नंबर ऑफ वैल्यूज ऑफ के चाहिए, सर इंटरनेट के की वैल्यू नहीं चाहिए, के की वैल्यू नहीं चाहिए हमको, हमको क्या चाहिए, नंबर ऑफ वैल्यूज ऑफ के फॉर विच द सिस्टम हैज नो सॉल्यूशन। हमने जो लाई वैल्यू वो के की वैल्यू 3 आती है तभी ये होता है, लेकिन के कितने मिले, एक ही तो मिले, दो नहीं मिले। आया भाई, बोलते ही नहीं, मुंह का रह जाते हैं सब लोग, इतना इतना घाटा पढ़ के Yes, समझाता sir. हूँ तो बोलते Yes. रहो ना यार, क्या बे बंद करके बैठ जाते हो। मैं बोल रहा हूं कि के की नंबर ऑफ वैल्यूज ऑफ के चाहिए, के बराबर 3 आया वे करेक्ट है, उसका मतलब 3 नहीं लिखने का है, 3 लिखोगे Yes, तो sir. नंबर ऑफ वैल्यूज ऑफ के 3 आई ऐसा होगा। ये तो परफेक्ट एग्जैक्ट वैल्यू क्या आई वो बताता है, कितनी नंबर्स ऑफ वैल्यूज आई वो तो एक ही आई, तो आंसर एक लिखा जाएगा, पता चला अभी। हाँ सर। चलो तो आगे बढ़ो। यस सर। इसके बाद वाला सम देखो। पंकज। हाँ एक मिनट यहाँ हाँ एक्सीड हाँ हो गया। कोई बात, कोई बात, निकालो सेट कर लो खुद से। हाँ अब जो सम आ रहा है ये थर्ड वाला, इसमें इफ अल्फा बीटा नॉट जीरो and f of n is equal to alpha raised to n plus beta raised to n and डिटर्मिनेंट दिया गया है, देखो 3 1 प्लस f1 1 प्लस f2 1 प्लस f1 1 प्लस f2 1 प्लस f3 1 प्लस f2 1 प्लस f3 1 प्लस f4, ऐसा डिटर्मिनेंट, उसकी वैल्यू आंसर दिया गया है उसका k इंटू 1 माइनस अल्फा होल स्क्वेयर इंटू 1 माइनस बीटा होल स्क्वेयर into alpha minus beta whole square, then k equal to what blank। तो 4 ऑप्शन दिया है, JEE मेन 2014 में ये पूछा गया है। वो 13 वाला दोनों सम हो गया, एक डिटर्मिनेंट पे हुआ और एक मैट्रिक्स पे हुआ। अब यहाँ सम आ रहा है थर्ड, यहाँ दोनों कंबाइन है, देखें कैसे करेंगे हम। समझ लो पहला क्वेश्चन समझ लो, कुछ प्रॉब्लम है, क्वेश्चन नहीं समझ में आ रहा है तो बोलो। No, sir. अभी नो गई सर। सर। हाँ अभी, अभी देखो F1 जो लिखने जाओगे तो F1 की जगह क्या लिखोगे, आप बता सकते हैं। F1 की जगह हम लिखना अल्फा चाहते हैं, F1 हमको लिखना है तो क्या लिखेंगे। अल्फा प्लस बीटा। हाँ अल्फा अल्फा प्लस प्लस बीटा, FN दिया है ना, FN ऊपर देखो, FN बराबर अल्फा रेस टू एन प्लस बीटा हाँ रेस सर टू एन। दिया। हाँ तो उसका यूज करने का है, दिया इसीलिए है कि आपको यूज करके लिखना है F1 अल्फा प्लस बीटा। अल्फा 2 की जगह क्या लिखोगे। अल्फा अल्फा टू की स्क्वायर जगह प्लस अल्फा बीटा। स्क्वायर प्लस बीटा। हाँ इस तरह से F3 F4 भी लिख सकोगे, बराबर। तो अपना डिटरमिनेंट क्लियर हो जाएगा अभी। चलो तो Yes. मैंने क्या बोला है, हाँ देखो सर। जरा धीरे धीरे आगे बढ़ना का है। हम ये जो डिटरमिनेंट है वो नहीं रखते, हम उसको कंसीडर करके डेल्टा बराबर एक मैट्रिक्स बना दिया, मैंने मैट्रिक्स में ही लिख दिया। आपको कनेक्शन पता है मैट्रिक्स और डिटरमिनेंट का। जब भी आप मैट्रिक्स में से डिटरमिनेंट जाना हो तो मैट्रिक्स का ब्रैकेट हटा के डिटरमिनेंट का साइन लगाना, डिटरमिनेंट को यस सर। मैट्रिक्स में कन्वर्ट करना है तो डिटरमिनेंट के साइन हटा के मैट्रिक्स करना, दूसरा कुछ करने का ही नहीं। तो देखो मैंने कंसीडर किया डेल्टा बराबर एक मैट्रिक्स के फॉर्म में, यही डिटरमिनेंट वाला नंबर्स मैट्रिक्स में लिखा, और मैंने क्या लिखा, बी ए मैट्रिक्स ऑफ 3/3। आप एक्सेप्ट करोगे ना। हाँ सर। हाँ सर। अच्छा हाँ। इसके बाद मैंने कीमत लिखी, देखो आगे, अब आगे बढ़ाओ।
अब डेल्टा बराबर क्या होगा, जो जो मैंने अभी अभी बोला, F1 की जगह अल्फा प्लस बीटा, F2 की जगह अल्फा स्क्वायर बीटा स्क्वायर, ऐसा लिख दिया सभी जगह पे, चेक कर लो। तो ये हुआ डेल्टा बराबर, हो गया। ओके सर। हाँ सर। हाँ हाँ, अभी अभी देखने की बात यही है, जरा ऊपर जाने दे थोड़ा सा, थोड़ा सा, बस बस बस। देखो ये जो आपने मैट्रिक्स बनाई, को, कोई भी मैट्रिक्स हम प्रोडक्ट ऑफ टू मैट्रिसेस में कन्वर्ट कर सकते हैं, जैसे मैंने ये कन्वर्ट किया है। इसका दिमाग होना चाहिए भाई, इसमें भी ऐसा नहीं कि इजीली आप सेट कर सकोगे, थोड़ा प्रयत्न करना पड़ता है। बहुत पिछले सालों में ये बुक मैट्राइसिस की आई थी, उसमें ऐसी टाइप का सम बहुत से दिए गए थे कि गिवन मैट्रिक्स कैन बी एक्सप्रेस्ड एज प्रोडक्ट ऑफ टू मैट्राइसिस, ऐसा होता था। तो कोई भी मैट्रिक्स आपको स्क्वायर मैट्रिक्स दी गई हो और उसको बोला है कि भाई कोई प्रोडक्ट ऑफ टू मैट्राइसिस में लिखो, तो अभी बहुत सम आते थे उस टाइम पे। तो उसका मैंने नॉलेज का यूज किया, और जो ये मैट्रिक्स दी गई है उसका प्रोडक्ट ऑफ टू मैट्रिसेस बना के लिखी है। कैसे लिखी है, तो देखो मैंने 1 + 1 + 1 3 को बना दिया वहां पे, और मैंने क्या लिखा, पहली वाली मैट्रिक्स में पहली रो 1 1 1 लिखा, और दूसरी वाली मैट्रिक्स में पहला कॉलम 1 1 1 लिखा, ताकि जब प्रोडक्ट करने जाओ तो 1 × 1 1 + 1 × 1 1 + 1 × 1, तो वो 3 ही आ जाएगा, बराबर है। यस सर। Yes, sir. हाँ, अभी पहली वाली रो फिक्स रखो पहली मैट्रिक्स में, और दूसरी वाली मैट्रिक्स में ऐसा लिखो ताकि वो प्रोडक्ट सम 1 + α + बीटा ही आए, क्योंकि वही चाहिए हमको। तो मैंने पहला 1 1 1 जो पहली रो थी पहली मैट्रिक्स में, उसको फिक्स रखा है। अब हम दूसरी मैट्रिक्स में दूसरी कॉलम लिखने जा रहे हैं, तो 1 × 1 करोगे तभी 1 आएगा, 1 के साथ अल्फा का प्रोडक्ट करेगा तो अल्फा आएगा, 1 के साथ बीटा का प्रोडक्ट करोगे तो बीटा आएगा। तो इसीलिए मैंने दूसरी कॉलम 1 α β ऐसा बना दिया, पता चला बराबर। यस Yes, सर। sir. यस सर। अब तीसरा एलिमेंट हमको चाहिए 1 + α² + β²। तो पहली वाली मैट्रिक्स में तो फर्स्ट रो 1 1 1 फिक्स ही है। अब हम दूसरी वाली मैट्रिक्स में तीसरी कॉलम ऐसा लिखना चाहिए ताकि वो प्रोडक्ट हो जाए। तो 1 के साथ 1 प्रोडक्ट करोगे तो 1 आएगा, फिर 1 के साथ α² करोगे तो α² आएगा, एंड 1 के साथ β² का प्रोडक्ट करोगे तो आ जाए। बोलो आ गया क्या नहीं। पहली वाली यस मैट्रिक्स सर। में पहली रो 1 1 1 फिक्स रख के ये सबके साथ प्रोडक्ट चेक कर लिया, तो अपना प्रोडक्ट मैट्रिक्स जो ऊपर है उसकी पहली रो आ गई ना। Yes, sir. अब दूसरी यस रो सर। की बात करें, दूसरी, देखो अभी तो वो दूसरा वाला मैट्रिक्स फिक्स हो गया। अब हमको यहाँ दूसरा एलिमेंट मीन्स दूसरी रो कौन सी लिखनी चाहिए पहली मैट्रिक्स में, ताकि वो प्रोडक्ट दूसरी जो रो है वो एग्जिट आ जाए। तो मैंने सोच के लिखा 1 के साथ 1 मिलाओगे तो 1 × 1 होगा ऊपर वाला। हाँ, दूसरी दूसरी मैट्रिक्स में है। हाँ, ये 1, और दूसरी मैट्रिक्स में ऊपर वाला 1, ये 1 × 1 1 हुआ। फिर अल्फा के साथ 1 होगा प्रोडक्ट, वो अल्फा आएगा, बीटा के साथ 1 का प्रोडक्ट बीटा आ जाएगा, तो 1 + α + β हुआ। Yes, यस sir. सर। अब 1 α β दूसरी रो तो फिक्स रहेगी। अब यहाँ दूसरी मैट्रिक्स में दूसरी कॉलम कैसे सेट करो कि 1 + α² + β² आ जाए। तो उसी लिए मैंने दूसरी अल्फा कॉलम 1 α β लिख दिया। तो वो प्रोडक्ट करके चेक कर लो आप, प्रोडक्ट का तो रूल पता है कैसे प्रोडक्ट करना है। तो बोलो आ Yes. यस जाता सर। है कि नहीं। तीसरी रो 1 α², तीसरा कॉलम 1 α² β² लिखना पड़ेगा, ताकि वो 1 + α³ + β³ हो जाएगा। ये Yes. आपकी यस सर। जिम्मेवारी है, आप प्रोडक्ट करके दिखाओ। मैं यहाँ बोल बोल के बोलूंगा तो समझ में नहीं आएगा थोड़ा। अब यस सर, तीसरी, चलिए हाँ, आप। पहली वाली मैट्रिक्स में तीसरी रो देखो, और ऑल कॉलम्स ऑफ सेकंड मैट्रिक्स के साथ प्रोडक्ट करके देख लो, आ जाता है कि नहीं एलिमेंट। यस सर, आ रहा है। बस तो यही है, ये ट्रिक यस है। सर। तो मैंने क्या किया, जो अपना डिटर्मिनेंट दिया गया था उसका मैट्रिक्स फॉर्म कर दिया। मैट्रिक्स फॉर्म जो आया है बिग वाला, उसका मैंने दो मैट्राइसिस का प्रोडक्ट में कन्वर्ट कर दिया। वो तो बराबर पता चल गया आपको। Yes, हाँ sir. सर। अच्छा, अब हम फिर से डिटर्मिनेंट में कन्वर्ट कर देते हैं। आगे देखो, डिटर्मिनेंट डेल्टा।
डिटर्मिनेंट साइन पर दी डेल्टा, मतलब कि ये दो मतलब राइट साइड पे भी डिटर्मिनेंट लिखेंगे। और अंडर मैट्रिक्स का प्रोडक्ट है, आपको रूल है मैट्रिक्स ए बी, डिटर्मिनेंट लोगे तो डिटर्मिनेंट ए इंटू डिटर्मिनेंट बी होगा। डिटर्मिनेंट ऑफ ए बी बराबर डिटर्मिनेंट ए इंटू डिटर्मिनेंट बी, रूल है ना। तो उसीलिए दोनों का हम सेपरेट डिटर्मिनेंट लिख सकेंगे। देखो आगे जाओ, ये आया देखो, ये जो डिटर्मिनेंट डेल्टा है मतलब कि अपनी जो ओरिजिनल है वो डिटर्मिनेंट बनाया, उसका दो प्रोडक्ट में कन्वर्ट हुआ। बोलो बराबर ध्यान से आया? हाँ, ये यस रूल्स सर। के हिसाब से। Yes. अच्छा, अब देखने की बात ये कि दोनों ठहर, दोनों डिटर्मिनेंट सेम है, यस सर। दोनों डिटर्मिनेंट सेम है, तो इसका मतलब होल स्क्वायर हो गया। हाँ सर। तो अब हम डिटर्मिनेंट की वैल्यू लिखने जाएंगे और होल स्क्वायर करते जाएंगे। तो इसीलिए मैंने ऑपरेशन अप्लाई किया। देखो R1 माइनस R2 किया पहला, आप चेक करो यस वहां R1 माइनस R2, तो 1 माइनस 1 जीरो होगा, 1 माइनस अल्फा होगा एंड 1 माइनस अल्फा स्क्वायर होगा, बराबर है। फिर यस मैंने, सर। हाँ, फिर मैंने सेकंड रो में से थर्ड रो कट किया रूल्स के हिसाब से। 1 माइनस 1 जीरो होगा, फिर अल्फा माइनस बीटा, फिर अल्फा स्क्वायर माइनस बीटा स्क्वायर, बराबर है। एंड तीसरी रो यस ऐसी सर। रहेगी 1 बीटा बीटा स्क्वायर। हो गई बात बराबर समझ में? आ गई सर। Yes, अच्छा, sir. अब मैं क्या कॉमन निकालता हूँ ना, जैसे हम लोग डिटर्मिनेंट में करते हैं वैसे ही वर्क है। तो वो पहली रो में से 1 माइनस अल्फा कॉमन आएगा, 1 माइनस अल्फा बाहर आने का, तब होल स्क्वायर हो जाएगा। रिमेंबर डिटर्मिनेंट का होल स्क्वायर है, तो आप बाहर निकालोगे डिटर्मिनेंट के अंदर से तो 1 माइनस अल्फा का होल स्क्वायर होगा। फिर दूसरी रो है उसमें से अल्फा माइनस बीटा कॉमन निकल रहा है, तो वो भी बाहर निकालो लेकिन होल स्क्वायर करके, और बाकी बचे हुए टर्म अंदर लिख दो। चेक कर लो अभी। यस सर, बराबर है। थोड़ा ऊपर जाने देने, तू तो समझता ही नहीं कि मैं आता हूं तो वहां बस ऐसा करना चाहिए ने, बोलने के बाद करता है, ये क्या कहे। देखो 0 1 माइनस अल्फा निकल गया तो 1, वहां 1 माइनस अल्फा स्क्वायर का 2 फैक्टर पड़ता है, तो एक निकाला है 1 माइनस अल्फा, तो अंदर एक 1 प्लस अल्फा रहेगा। दूसरी रो में भी देख लो, अल्फा माइनस बीटा निकाला कॉमन, तो 0 फिर 1 एंड अल्फा स्क्वायर माइनस बीटा स्क्वायर का 2 फैक्टर है, एक निकाल दिया है तो प्लस वाला बचेगा। तीसरी लाइन ऐसी है, होल स्क्वायर हो गया बराबर। यस सर। Yes, sir. हाँ, अभी एकदम ऊपर चला गया, चलो कोई बात नहीं। अब हम क्या करें, पहली रो में से दूसरी रो कट कर सकते हैं, करो। ठीक है सर। वो आपको करना है, चेक करो। पहली रो में से दूसरी रो कट करके सोचो। 0 फिर 1 माइनस 1 जीरो 0, फिर माइनस अल्फा कट हो जाएगा, 1 माइनस बीटा आ रहा है कि नहीं समझ में? आ गया सर। फिर 0 1 अल्फा प्लस बीटा एंड 1 बीटा बीटा स्क्वायर, ऐसा ही होगा। बोलो। क्लियर सर। हाँ, अब उसका सिंप्लीफाई करके देखें। चलो 1 माइनस अल्फा होल स्क्वायर अल्फा माइनस बीटा होल स्क्वायर, और इसका क्या सिंप्लीफाई होगा अंदर का डिटर्मिनेंट का, तो 1 माइनस बीटा इंटू करके देखोगे तो माइनस आएगा ना, सिर्फ -1 0 -1 चेक आता है ना, चेक करना। और उसका स्क्वायर है तो माइनस का तो स्क्वायर निकल जाएगा, प्लस हो जाएगा। तो देखो ये आया, डिटर्मिनेंट डेल्टा की वैल्यू 1 माइनस अल्फा होल स्क्वायर अल्फा माइनस बीटा होल स्क्वायर एंड 1 माइनस बीटा होल स्क्वायर आई। और उसने क्या दिया था वो देखो, ऊपर जाने दे तो आ जाएगा, बात करके मैंने लिखा हुआ है। ऊपर जाता है तो ऊपर जाओ, चलो चलो कोई बात नहीं। आया देखो, के इंटू यही है ना उसका, यस सर। का कंपैरिजन करेंगे तो के की वैल्यू कितनी होगी? अपना आंसर क्या आया था? अपना आंसर ये यहाँ रखो ना, हाँ ये आया था। और उसने दिया है के करके प्रोडक्ट करके, तो कंपैरिजन करो तो के सीधा ही 1 दिखाई देता है। आपको दिखता है कि नहीं, क्या कंपेयर करना है, क्या देखना है? अरे हाँ भाई, सर। हम लोगों ने डेल्टा की कीमत जो निकाली और उसने जो दी है उसका कंपेयर करो। राइट वाला, ये डेल्टा वाला हमने निकाला पहला वाला, और दूसरा वाला गिवन करके मैंने लिखा ये गिवन है, तो कंपैरिजन करने से किसकी वैल्यू आएगी, के की वैल्यू मिलेगी कि नहीं? यस सर। अरे हाउ दब्बे है यार आप लोग को,
समझ में नहीं जल्दी आ रहा है। ये दोनों साइड से इक्वालिटी वाली टर्म निकल जाएगी तो के की जगह 1 ही दिखाई रहा है, तो सो दैट के इज 1। ऐसे गप्पे लगा के 1 नहीं लिखते हम। आप देखो 1 माइनस अल्फा स्क्वायर दोनों साइड है, अल्फा माइनस बीटा होल स्क्वायर भी दोनों साइड है, 1 माइनस बीटा होल स्क्वायर भी दोनों साइड है। तो ये तो सेम के सेम वैल्यू आ गई। और यहाँ जो लिखा है के और उधर कोई नहीं है तो 1 होगा ना, कुछ न कुछ तो होगा कि नहीं, 1 तो हो ही सकता है। यस सर, समझ गए। इसीलिए के 1 है। तो बोलते नहीं तो मेरे को ऐसा ही समझ में आ रहा है कि इतना भी समझ में नहीं आ रहा है। ओके ओके, नहीं आगे सर। बढ़ो। चलो अच्छा है, समझ में आया तो बहुत ठीक ठाक है। तो ये हो गया सम। कितना डेंजर रखता था शुरुआत में। फिर आपको यस पता सर। चल गया कि उसको डिटर्मिनेंट मैट्रिक्स में कन्वर्ट कर ले। मैट्रिक्स में तो प्रोडक्ट कर सकते हैं, डिटर्मिनेंट का रूल नहीं है अपने पास, लेकिन मैट्रिक्स में तो ऐसा बार बार किया था हम लोगों ने, तो उसको पता हो गया है आपको। तो इसका इलाज इसका यूज करके मैंने निकाल दिया के की वैल्यू। आगे बराबर। अब देखो चौथा यस सर। नंबर, वो भी JEE मेन 2014 वाला आया। एक डिटर्मिनेंट का आया, अब वो आया मैट्रिक्स वाला। क्या दिया है देखो, इफ ए इज एन 3 by 3 नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स। आपको पता है नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स का मतलब इनवर्स एग्जिस्ट है उसका। यस सर। और दूसरी बात बोले तो डिटर्मिनेंट ए नॉन जीरो है। ये समझना चाहिए, ये सब कुछ कॉन्सेप्ट तो बहुत क्लियर होना चाहिए। मेरा कॉन्सेप्ट क्लियर है सभी का, तभी मैं इतना आपके साथ फाइट करके समझा रहा हूँ। ये समझो बराबर। जब कॉन्सेप्ट क्लियर होगा तो अपने आप समझ में आना शुरू हो जाएगा। देखो ए नॉन सिंगुलर है तो उसका मतलब डिटर्मिनेंट ए नॉन जीरो और यू से ए इनवर्स एग्जिस्ट। आगे बढ़े, सच दैट क्या लिखा है, ए डैश मतलब ए इंटू ए ट्रांसपोज। डैश का मतलब ट्रांसपोज, आपको पता है फॉर्मूला। फिर हाँ ए सर। ट्रांसपोज ए डैश इंटू ए and B equal to A inverse A dash. Then question asks what BB dash equals. So there are 4 options. So you have to reply which one is correct. So BB dash you have to find. BB dash means B into B transpose. Whatever that. But B value you can write what given A inverse A dash. यस सर। एंड देन बी डैश मीन्स ए इनवर्स ए डैश होल डैश। बहुत ध्यान से देखना और कर्सर घुमाते रहना है पंकज। जो पहला ए इनवर्स ए डैश वो बी की वैल्यू लिखी, इसके बाद सेम बी की वैल्यू है और हमने डैश लिखा क्योंकि बी डैश लिखना है। अब उसके नीचे वाला स्टेप पे, तो क्या नीचे वाला स्टेप है देखो, ए इनवर्स ए डैश ऐसा ही रहेगा। और आपको प्रॉपर्टी ध्यान में है, मैंने बगल में लिखी है कि ए बी होल डैश का मतलब क्या होता है, पिछले वाला का पहला डैश, आगे वाले का बाद में डैश। बी डैश ए डैश, ए बी ट्रांसपोज इज बी ट्रांसपोज ए ट्रांसपोज। जैसे ए बी इनवर्स आता है उसमें भी पहला बी इनवर्स ए इनवर्स होता है, ऐसा आएगा ये बराबर। यस सर। याद आ रहा है कि ऊपर से जा रहा है? नहीं सर, आ रहा। हाँ, तो यहाँ आएगा ए डैश का डैश। जरा देख लो उधर, ए डैश का डैश पहले दूसरे वाले का लिखा, फिर इनटू पहले वाला ए इनवर्स है उसका डैश। बोलो यहाँ तक सबको समझ में आना चाहिए। यस सर। अच्छा ऊपर जाने दे, अब आगे देखे उसके बाद वाला, बस वो दिखाई देना चाहिए, अगले वाला स्टेप दिखाई देना चाहिए, तभी तो कंपेयर करेंगे हम। देखो ए इनवर्स ए डैश आ गया है, ए डबल डैश का मतलब ये है, ये भी फॉर्मूला से आपको पता है, एंड ए इनवर्स का डैश। ऐसा छोड़ के मैंने रख दिया, वहां रीजन भी मैंने दिया है, रीजन भी बराबर पहचानो। ए डबल डैश है, यहाँ तक सब कुछ हो गया बराबर। चलो वो ऊपर यस सर। जाने दे, ऊपर लगा दे फिर। हाँ बस यहां से आगे देखो। देखो अब मैं क्या करने जा रहा हूं, एसोसिएटिव लॉ का यूज करता हूं। ए इनवर्स को मैंने सेपरेट कर दिया एंड ए डैश एंड जो उसके बाद वाला है उसका ज्वाइंट कर लिया, ए डैश इंटू ब्रैकेट ए इनवर्स डैश। ऐसा ही है, बराबर समझ यस सर। में आ गया। फिर से आगे बढ़े, ए इनवर्स बाहर रखा और फिर से एसोसिएटिव लिखा, ए डैश ए ज्वाइंट किया और ए इनवर्स डैश को अलग रखा। बोलो कुछ समझ में यस आ रहा है? अच्छा इसके हाँ बाद, सर। यहाँ इसके बाद डेटा में दिया गया है क्या
कि ए डैश ए बराबर ए डैश है, तो इसीलिए ए डैश ए की जगह मैंने ए डैश कर दिया। देखो बराबर ध्यान से, क्यों कैसे बदल गई साइन, ऐसा नहीं, यहाँ दिया है मैंने बाजू में लिखा ही है ए डैश ए बराबर ए डैश गिवन, तो इसीलिए ए डैश ए की जगह मैंने ए डैश लिख दिया। और उसके बाद तो एज इट इज है ए इनवर्स का डैश। फिर से एसोसिएटिव लो लगा के ए इनवर्स ए को 60 में जोड़ दिया। देखो ये बहुत सिंपल तरीका है, किसको 60 में यस लेना है सर। किसको अलग लेना है वो अपने आप सूझ जाता है। ए डैश ए लोगे तो आएगा, और ए डैश ए इनवर्स डैश अलग तरीके से ले लिया। देखो अब देखो ए इनवर्स ए की जगह आई, फिर दोनों स्टेप ऐसा ही रहेगा, ए डैश ए इनवर्स का होल डैश। अब देखो, अब फॉर्मूला फिर से आ गई, वहां हमने ए बी होल डैश को बी डैश ए डैश किया था ना, वही बी डैश यस ए डैश हो तो हम ए बी का होल डैश कर देंगे। तो देखो यहाँ यस ए बी ए डैश बी डैश जैसा ही है सिचुएशन, ए डैश ए इनवर्स डैश, मतलब ए इनवर्स पहले लिखो बाद में ए लिखो और होल डैश करो, तो वो हो गया यस ए इनवर्स ए तो आई ही है, तो आई डैश हुआ। आई का डैश वो आई ही होगा, जरा ऊपर जाने दे, ऊपर, हाँ आई आया, आई डैश का मतलब आई, तो पूरे का पूरा जो उसने दिया था बी बी डैश करके क्या आना है, तो वो कंप्लीट होके आ गया क्या, आई। यस सर। पता चला बराबर, तो उसीलिए हाँ सर। 4 ऑप्शन में बी ऑप्शन करेक्ट है। ओके सर। ये बहुत दिमाग दौड़ाना पड़ता है भाई, और आपको करना पड़ेगा, कोई तकलीफ वाला सम नहीं है, सिंपल है, लेकिन कॉन्सेप्ट बड़ा सब क्लियर होना चाहिए। एसोसिएटिव लोग, फिर ए डबल डैश बराबर ए बी होल डैश बराबर बी डैश ए डैश, इसका यूज करना है। ए इनवर्स ए का मतलब आई, ये सब याद रहोगे तो आ जाएगा। चलो फिफ्थ वाला नंबर देते हैं, फिफ्थ वाला सम, हाँ बस 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 क्वेश्चन रखो। इफ a इक्वल टू 1 to 2 to 1 minus 2 a to b is a matrix satisfying the equation a a transpose बराबर 9 times I, then what are a and b? એટલે you have given in order per a b means a value what, b value what, according as you reply answer। जे डबल ई मेन 2015 वाला सम, ये 2015 का मैट्रिक्स वाला एक सम आ गया। इसके बाद डिटर्मिनेंट वाला एक आएगा, ऐसा करके आगे बढ़ते हैं। 13 वाला हो गया, 14 वाला, दो दो सम हो गया, अब आया 15 वाला। तो देखो यहाँ ओके सर। बहुत सिंपल वर्क है। सिंपल मतलब कि आप अपने आप गिन सकोगे, जैसा दिया है वैसा ही करते जाओ। देखो ए ट्रांसपोज बराबर 9 आई तो दिया ही है डेटा में, तो हम पहले यस मैट्रिक्स सर। को लिख देते हैं, जो दिया है वो मैट्रिक्स ए। इसके बाद ए ट्रांसपोज, आपको पता है ट्रांसपोज में क्या करना पड़ता है, रो एंड कॉलम्स आर रो कॉलम और कॉलम को। interchange। First row write down in first column, second row write down in second column, and third row in third column। पता चला? अभी ए डैश देख लो अपने तरीके से, ए यस अलग सर। है, ए डैश कन्वर्ट करके लिखा है, देख लिया सबने? हाँ सर। हाँ, इज इक्वल टू 9 आई जो दिया है मैंने लिख दिया। अभी पहली दो मैट्रिक्स का प्रोडक्ट होगा लेफ्ट साइड वाली, तो उसका प्रोडक्ट अपने तरीके से विचार सोचो, मैंने आइडिया तो बताई है कैसे प्रोडक्ट करना है, चेक करके बताओ बराबर है कि नहीं। यस सर बराबर है। बराबर जा रहा है ना? हाँ सर। अभी देखो समझ में आया? आयुषी, आयुषी नहीं बोलती है कुछ। સર મેં તો હમણાં જ માહિતી હું હમણાં જ વાંચ્યું, હું બોલે તો કાં ગયેલી? બહાર ફરવા ગયેલી? હે બહાર ફરવા ગયેલી ના સર તો પછી હમણાં જ વાંચ્યું એ હું વળી પ્રોડક્ટ કરી હમણાં લે જ નહીં? વાંચી નહીં એમ નહીં બોલતી હું બોલું? બોલું છું એમ કહું છું હવે તને પૂછવું પડે મારે, કારણ કે તું જવાબ આપતી નથી એટલે બેહી જ રહેતી છે એવું લાગ્યા કરે છે। ફટાફટ નહીં જવાબ આવવો જોઈએ કે પ્રોડક્ટ કર્યો 1 into 1 plus 2 into 2 plus 2 into 2, इस तरह से प्रोडक्ट किया जाता है। याद है कि गायब हो गई सब?
नहीं सर 6 है। हाँ, तो इसी तरह से वो आया 9 0, फिर A+4+2B, फर्स्ट रो एंड लास्ट कॉलम के साथ प्रोडक्ट करो तो 1 इंटू ए आएगा, 2 इंटू 2 4 होगा, फिर 2 इंटू बी એટલે 2B आता है। इसी टाइप से प्रोडक्ट होता है। अब यस देखो दूसरी रो पहले में से लो और कॉलम वाइज प्रोडक्ट करो। तो दूसरी रो 2 1 -2 है और दूसरी मैट्रिक्स में फर्स्ट वाली कॉलम 1 2 2 है, उसके साथ प्रोडक्ट करके देखो तो 2 1 जा 2 प्लस 2 1 जा 2 यानी 4 एंड -2 2 जा -4, ये इसलिए कट हो गया, वो जीरो लिखा गया। अब आया समझ में? तो यस उस सर। टाइप का प्रोडक्ट मैंने कर दिया और राइट साइड पे देख लो 9i का मतलब क्या होता है। आई का मतलब 9 तो हाँ 900 090 एंड 009 9 अंदर ले लिया, मैं आइडेंटिटी के साथ मल्टीप्लाई कर दिया। चलो अब यस सर। कंपैरिजन होगा, दोनों साइड इक्वल मैट्रिक्स है तो कंपैरिजन करो। तो कंपैरिजन से आपको 9 बराबर तो 9 हो गया, 0 बराबर 0 है। तीसरी वाला एलिमेंट देखो, तीसरा वाला A+4+2B और उधर 0 है तो वो इक्वेशन एक बन गया। उसी टाइप से यस सर। दूसरा इक्वेशन कौन सा आएगा, 2A+2 -2B वाला बराबर 0। तीसरा इक्वेशन क्या आएगा, तो A+4+2B वो तो आ गया है, 2A+2 यस सर। -2B वो भी आ गया है, तो सिर्फ लास्ट वाला बचा A² + 4 + B² बराबर 9। इसी तरह तीन इक्वेशन हमारे पास आ जाता है। यस बोलो, सर। अब पहला इक्वेशन जो था A+4+2B बराबर 0, इसमें से क्या मिलेगा, A+2B बराबर -4, उसको हमने नंबर यस 1 करके लिख दिया। दूसरा वाला इक्वेशन में से क्या मिलेगा, तो 2 2 कॉमन। कॉमन निकाल लो, 2 तो डिवाइड कर दो तो A-B बराबर -1 होगा कि नहीं। यस यस सर। सर। इसको दूसरा नंबर लिख दिया। ये दोनों सॉल्व करना बहुत इजी है। बाय सॉल्विंग 1 and 2 व्हाट वी गेट, जरा ऊपर जाने दे भाई, आगे लाइन ऊपर जाने दे। हाँ, व्हाट वी गेट, तो देखो ये सब्ट्रैक्ट करोगे तो ये कट हो जाता है। 1 and 2 में नजर करो, 1 और 2 इक्वेशन सब्ट्रैक्ट करो 1 में से 2 तो ए कट हो गया, 2b में b ऐड हो जाएगा तो 3b होगा, और यहाँ यस सर। -4 + 1 होगा तो -3, 3b बराबर -3 तो b का वैल्यू -1 हो गया। अभी b वैल्यू यस सर। तो सेकंड इक्वेशन में -1 क्या होगा, +1, उधर आएगा तो -2, a बराबर -2 हुआ। देखो -2 आया कि नहीं बराबर। यस सर आया। तो ये ए और बी की तो वैल्यू आ गई, लेकिन चेक करना पड़ेगा कि तीसरा इक्वेशन का वो सेटिस्फाई कर रहा है कि नहीं। तो ऑल्सो यस वी सर। सी A-2 एंड B-1 सेटिस्फाइज योर इक्वेशन। चेक, ए की जगह -2 लिख के चेक करो, 4 आएगा, 1 बी यस की सर। 4 जगह + 4 हाँ 4 4 8 एंड 1 9 आ गया and ने। 1 + 4 मतलब ए बराबर -2 एंड बी बराबर -1 करेक्ट वैल्यू है। तो ऑर्डर पर ए यस बी यस लिखना सर। है तो ऑर्डर पर -2 -1 लिखेंगे हम, और वो हो गया सर। करेक्ट ऑप्शन डी। चेक कर लो ऑप्शन डी। हाँ सर। ऐसा है, कितना सिंपल सम था, कुछ यस करने अच्छा। का सर। ही नहीं, जितना दिया है जैसा किया है वैसा करने का, वो तो आपको याद रखना पड़ेगा भाई। ओके सर। हाँ, तो अब हम जाते हैं कहाँ पे, फिफ्थ 6 वाला सम, पेज नंबर 5। ये अब आया JEE मेन 2015 का दूसरा सम। वो है किसके ऊपर डिपेंड, डिटर्मिनेंट के ऊपर। देखो, द सेट ऑफ ऑल वैल्यूज ऑफ लैम्बडा फॉर विच द सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन करके 3 इक्वेशंस दिया है, has non-trivial solution, has non-trivial solution, એટલે કે lambda set of values of lambda for which this system has non trivial એટલે સરળ solution નહીં હોય તેને શું કહેવાય, non trivial solution. A ओके सर। is an empty set, is a singleton set, contains 2 elements and contains more than 2 elements. ये 4 ऑप्शन में से कौन सा करेक्ट ऑप्शन है, तो हम कैसे करेंगे वो देखो। एक अपने नोटबुक में लिखो। दूसरा, ये जो आया ना वो दूसरी टाइप का आया, वो पहले वाले में क्या था, हैज नो सॉल्यूशन ऐसा आया था ना,
उसमें क्या करना है वो भी मैंने लिख के बता दिया, आपने लिखा हो तो सही है। डेल्टा 1 डेल्टा 0 होना चाहिए, डेल्टा 1 और डेल्टा 2 नॉन जीरो होना चाहिए, ऐसा लिखवाया था ना पहले। कोई हाँ सर, हाँ सर। बोलना तो वैसा ही इसमें भी लिखना पड़ेगा, तो मैं बोलूं वैसे वैसे लिखते जाओ। ओके, ऐसा उभा रहो। ठीक है सर। हाँ सर, बोलो अब। लिखो a1x प्लस b1y, a1x प्लस b1y प्लस c1z बराबर d1। a1x प्लस b1y प्लस c1z बराबर d1 लिखा बराबर। यस हाँ सर। यस सर। बस अब 2 लिख के दूसरा इक्वेशन बनाओ, 3 लिख के तीसरा बनाओ। a2x प्लस b2y प्लस c2z बराबर d2। हाँ सर। और ये सर बन a3x गए। प्लस b3y प्लस c3z बराबर d3 हो गया। यस सर। हाँ अभी सर। देखो, अभी इसमें इसके अंदर क्या कंडीशन है, लिखो दिस सिस्टम ऑफ इक्वेशन, this system of equation यस। has non-trivial solution, has non-trivial solution if लिखो if अच्छा 25। has non-trivial solution if delta equal 0 and d1 equal to d2 equal to d3 equal to 0, delta equal to 0 and શું લખવાનું d1 equal D1 to d2 equal to d3 equal to 0। આ સરળ, એટલે જો તમને આવા ઇક્વેશન આપેલા હોય અને ક્વેશ્ચન सर પૂછ્યો है, હા D3 equal to D1 D2 D3 equal to 0, ડેલ્ટા ओके सर। 0 ના d1 d2 d3 બરાબર પણ 0 હોવું જોઈએ એમ, all ओके 3। सर। પતી ગયું। હા, તો હું हाँ કહેવા सर। માંગતો હતો કે આવા ઇક્વેશન હોય ને ક્વેશ્ચન પૂછે કે હેઝ નો સોલ્યુશન ફાઇન્ડ લેમ્બડા, તો તમને આ કન્ડિશન યાદ રહેવી જોઈએ કે ડેલ્ટા આપણે શું કરતા હતા, ડેલ્ટા તો ખબર છે ને ડિટર્મિનન્ટ, हाँ सर। એ ડેલ્ટા હા લેવાનું, હા એના બરાબર 0 લેવાનું, અને તે વખતે ओके d1 d2 d3 તમારા 0 હોવા જોઈએ, તો તમને જે લેમ્બડાની વેલ્યુ મળી જાય તે તમારો આન્સર એમ। જો હવે આપણા સમની અંદર આવો, જરા પાછું रिप्रेजेंट कर दो भाई, प्रेजेंट करनी આપણું પેપર। एग्जिट થઈ ગયું સર એટલે હા કઈ જોઈન કઈ કરવું વાત, પડે। એ તો હવે થાય। हाँ आ गया बराबर, वेरी गुड। देखो अभी उसका सॉल्यूशन किस तरह से मैं आगे बढ़ाऊं, देखो इक्वेशन पढ़ लो पहले, इक्वेशन 3 इक्वेशन देख लिया। हाँ सर। हाँ हाँ अब सर। देखो, हाँ अब देखो पहला इक्वेशन मैं बताऊं वही देखो, हाँ तो नहीं वहीं पे देखो, ठहरो जरा। वहां x1 वाली दो टर्म है, देखो लेफ्ट साइड पे 2x1 है, राइट साइड पे भी लैम्बडा x1 है ना, तो उसको लेफ्ट यस साइड सर। पे लाके लिखेंगे तो क्या होगा बोलो, X1 टू को कॉमन। माइनस लैम्बडा x1, x1 कॉमन निकाल देंगे। यस सर। होगा क्या नहीं भाई, हाँ यस सर सर। होगा। हाँ 2 माइनस लैम्बडा ब्रैकेट कंप्लीट फिर x1 माइनस 2x2 प्लस x3 बराबर 0 आएगा कि नहीं, હા यस सर आएगा। मतलब अपना d1 0 हो गया। अब देखो हाँ सर। दूसरी टर्म में भी x2 है, लैम्बडा x2 है राइट साइड पे, देखो देखो राइट साइड पे, इसका इंपॉर्टेंट है, उसको कलेक्ट करो लेफ्ट साइड में और x2 के साथ मिला दो, तो क्या होगा 2x1 एज इट इज रहेगा, फिर यस सर। -3 माइनस लैम्बडा, मतलब माइनस कॉमन निकाल लोगे तो -3 प्लस लैम्बडा x2 ऐसा आएगा, फिर प्लस 2x3 यस सर। बराबर 0, तो ये d2 भी 0 है, हो गया। फिर x3 यस वाले सर। का टर्म, नीचे चलो नीचे आगे बढ़ो, उधर तो x3 वाला कोई टर्म है ही नहीं, तो लैम्बडा यस x3 सर आ जाएगा, देखो मैंने लिखा वो बराबर आया समझ में, ये तीनों आया इक्वेशन। सर। हाँ तो यहाँ से क्या होता है कि d1 d2 वाला
राइट साइड वाला नंबर D1 D2 D3 मैंने इक्वेशन में लिखाया है, उसको देखो। ये Yes, वहाँ, sir. हाँ एक्स वाई जेड की जगह x1 x2 x3, उसका कोई प्रॉब्लम नहीं है, पर राइट वाला टर्म वहाँ जो इक्वेशन मैंने जो अभी अभी लिखवाया वह D1 D2 D3 था, वो ऑल जीरो है, देख लिया। Yes, तो वो sir. कंडीशन सेटिस्फाई हो रही है, तो मैं क्या लिखने जाऊंगा कि इट हैज नॉन ट्रिवियल सॉल्यूशन इफ डेल्टा जीरो, क्योंकि D1 Yes, D2 sir. D3 तो जीरो ही है। हो गया सब? नहीं है तो ऐसा करके लाना है, आ गया सब? Yes, Yes, sir. sir. आप डेल्टा बराबर जीरो लेके आगे बढ़ोगे तो आंसर आ ही जाएगा, कुछ करने का ही नहीं। लैम्बडा का मतलब अपना डिटर्मिनेंट, कौन सा वाला डिटर्मिनेंट आप समझ रहे हैं ना, वो x1 x2 x3 वाली लाइन का जो डिटर्मिनेंट सबका ले लो। चलो क्या हुआ, 2 माइनस लैम्बडा, फिर दूसरी नंबर बोलो जल्दी जल्दी। Two. माइनस -2 टू, फिर 1 फिर 2 वन, फिर घबराने की क्या, -3 टू माइनस लैम्बडा माइनस, +2 हाँ हाँ ऐसा। और तीसरी वाली लाइन -1 -1. +2 -1 2 माइनस लैम्बडा। Minus lambda. बस सिर्फ इसका सिंप्लीफिकेशन है और आंसर फिट हो जाएगा। देखो कितना बढ़िया Yes. मैंने सिंप्लीफाई दिया है, जरा धीरे धीरे नीचे लानी भाई, तो सिंप्लीफाई कैसे करें, हाँ ये तो दिखना चाहिए ना। चलो 2 माइनस लैम्बडा के साथ प्रोडक्ट में कौन सी टर्म आएगी, तो वो फॉरगेट करो, रोल। तो ये इसका प्रोडक्ट मैंने लिख दिया, देखो ब्रैकेट में 3 लैम्बडा प्लस लैम्बडा स्क्वायर -4, 2 चेक to किया the 4 बराबर। हाँ फिर Yes, सर। sir. हाँ ऊपर दूसरा नंबर कौन सा है यार, अब आगे जाना है, ऊपर -2 है तो माइनस वो आएगा फिर +2। -2 प्लस हो जाएगा हाँ फिर अंदर ब्रैकेट में क्या आएगा, आप कैलकुलेशन करो, उसको फॉरगेट करके Two plus -2 लैम्बडा और माइनस -2 माइनस लैम्बडा माइनस 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 प्लस +2। plus two. फिर 1 के साथ क्या होगा देख लो, 2 to the 4 और फिर हाँ, The 3 four प्लस minus लैम्बडा three. -3 माइनस लैम्बडा, क्योंकि माइनस माइनस Yes, प्लस sir. हो जाएगा, तो हुआ बराबर। देखो अब 2 Yes, sir. माइनस लैम्बडा, ये दूसरा वाला फैक्टर है ना, कहाँ जा रहा है पीछे, अभी जाने ना, पहले स्टेप पे आ जाने भाई। 2 माइनस लैम्बडा, फिर जो लैम्बडा स्क्वायर प्लस 3 लैम्बडा -4 है, वो देखो दूसरा ब्रैकेट जो है, तो लैम्बडा यस सर स्क्वायर प्लस 3 लैम्बडा -4, उसका फैक्टर मैंने बना हाँ के सर लिख दिया। लैम्बडा प्लस 4 लैम्बडा लैम्बडा, माइनस 4 सही हाँ है लैम्बडा +4 इंटू लैम्बडा -1। चलो फिर आगे बढ़ो, नेक्स्ट इसमें से टर्म 2 में, कॉमन निकाल लिया हाँ -2 कॉमन निकाल दिया, तो -4 एंड ब्रैकेट लैम्बडा -1। तीसरी वाली टर्म में जाओ, वहां भी -1 कॉमन 4 निकाल माइनस दिया, 3 हाँ माइनस कॉमन निकाल दिया, तो 1 माइनस लैम्बडा की जगह लैम्बडा -1 आएगा, तो तीनों में से लैम्बडा 1 बाहर निकल गया, देखो। कॉमन आ गया हाँ फिर करली में क्या बचेगा वो लिखा मैंने, 2 माइनस लैम्बडा एंड लैम्बडा लैम्बडा +4, प्लस और दूसरी दो टर्म में -4 -1 माइनस। माइनस बस तो उसमें क्या हुआ, सिंप्लीफाई देख लो, करली ब्रैकेट में क्या होगा, प्रोडक्ट करके मैंने लिखा माइनस लैम्बडा स्क्वेयर +2 लैम्बडा, बराबर है, फिर yes, sir. Yes, sir. +8 -5, ऐसा हुआ। तो लैम्बडा माइनस साइन तो दोनों में मल्टीप्लाई करके निकाल दिया, क्योंकि अदर Yes, साइड पे जीरो है, तो माइनस कट करने से कोई नुकसान नहीं होने वाला। लैम्बडा स्क्वायर +2 लैम्बडा -3 ऐसा आया, बराबर जीरो लिखना रह गया मैं, तो इक्वल टू जीरो, yes. बराबर है। अब उसका Hmm. फैक्टर होता है, इक्वल टू जीरो करके आगे बढ़ोगे, तो उसके बाद दो फैक्टर आएगा ना, लैम्बडा स्क्वायर -2 लैम्बडा -3 का, Yes, sir. एक लैम्बडा +3 एक लैम्बडा -1, ऊपर जाने दे अब। तो उसका अर्थकथन क्या हुआ, लैम्बडा -1, हाँ लैम्बडा 1 आया, दूसरी -3 आई, तीसरी वैल्यू भी 1 आई, तो एग्जैक्ट कितनी वैल्यू आई, 2 ही आई, Three. तो रिपीट हुई ना। हाँ सर हाँ सॉरी तो द सेट ऑफ ऑल वैल्यूज ऑफ लैम्बडा इज व्हाट, करली ब्रैकेट -3 -3 and comma 1 1 which contains how many members, 2 2 elements। mg तो आंसर होगा ऑप्शन सी। ऑप्शन सी में लिखा है कि हाँ कंटेन्स सर 2 एलिमेंट्स। बोलो सिंपल था क्या नहीं, Yes, sir. यस सर सब सिंपल ही आता है। डिटर्मिनेंट मैट्रिसेस में मोस्ट ऑफ डिटर्मिनेंट वाला सम बिल्कुल ऐसा ही आएगा, मोस्ट ऑफ। ओके सर चलो नंबर 7 में देखो, इफ कैपिटल ए बराबर मैट्रिक्स लिखा है 5a -b 3 2 and a into adjoint a
जरा पानी पी लो है भाई। हाँ सर। हाँ, A इंटू एडजॉइंट A इक्वल टू A इंटू A ट्रांसपोज देन 5A प्लस बी इक्वल टू व्हाट। अभी आप एडजॉइंट ए भी जानते हैं, प्रोडक्ट भी जानते हैं, ए इंटू एडजॉइंट ए ट्रांसपोज भी जानते हैं, प्रोडक्ट ए इंटू ए ट्रांसपोज भी कर सकते हैं। बस दोनों साइड कंप्लीट कर दो, फिर इक्वल इक्वेट करके कीमत निकाल दो, दूसरा कुछ है नहीं अंदर। ठीक है सर, ये कर लेंगे आप। कितना सिंपल है, देखो सम कितना सिंपल, कर लेंगे नहीं हम देख ही लेंगे अभी, लेकिन कितना सिंपल है वो आपको ध्यान में आना चाहिए। देखो ए लिख दिया मैंने 5A माइनस बी 3 2। अब हमको चाहिए ए इंटू एडजॉइंट ए, वन साइड पे प्रोडक्ट, दूसरी साइड पे ए ट्रांसपोज, जो दिया है वही लिखा है। चलो तो अभी ए को लिख दिया मैंने, फिर एडजॉइंट में क्या करते हैं हम, इंटरचेंज कर। हाँ इंटरचेंज एलिमेंट इसमें प्रिंसिपल डायगोनल में, और जो यस। सेकेंडरी डायगोनल है इसका हम ऑपोजिट साइन कर देते हैं। बस तो वही किया मैंने, 2 5A हो गया इंटरचेंज करने के बाद, फिर हुआ Yes, sir. माइनस बी की जगह प्लस बी और 3 की जगह माइनस 3, तो हो गया ए इंटू एडजॉइंट ए। अभी राइट हैंड वाली, यस सर। राइट हैंड साइड में ए तो फिक्स लिखा, फिर ए ट्रांसपोज, ट्रांसपोज में क्या करना है, रो को कॉलम में इंटरचेंज करना है। तो पहली sir. रो जो थी 5A माइनस बी, मैंने पहली कॉलम लिख दी, 3 2 सेकंड रो थी वो सेकंड और कॉलम सेकंड रो बना दी। सेकंड। बस अब दोनों साइड प्रोडक्ट भी आता है आपको, तो प्रोडक्ट करना है। हाँ सर। अभी देखो प्रोडक्ट करके चेक कर लो दोनों साइड, सर। पहले लेफ्ट साइड का प्रोडक्ट चेक करो, 5A इंटू 2 10A, फिर माइनस बी इंटू 10A, माइनस 3, 6 माइनस बी इंटू माइनस 3 प्लस 3B प्लस प्लस 3B। 3B। फिर पहली रो और सेकंड कॉलम ऑल्टरनेट मत करना, हाँ सर। 5AB फिर माइनस 5AB तो जीरो हो गया, कट हो गया। यस सर। फिर दूसरी रो और फर्स्ट कॉलम लो, 3 2 3 to 6 the एंड माइनस 6 -3. तो जीरो हो गया। अब यस सर। दूसरी रो तो और वहां सेकंड दूसरी कॉलम, हाँ तो 3B प्लस 10B, प्लस देखो 10 बराबर हो भी गया लेफ्ट करेक्ट। हैंड वाला। अब राइट हाँ हैंड वाला सर, चेक, हाँ अब राइट हैंड वाला चेक करो। 10A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर, वो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, प्लस बी प्लस B स्क्वायर, हाँ बी स्क्वायर। फिर पहली रो और दूसरी कॉलम लो 15A माइनस 2B बराबर। माइनस 2B, अभी दूसरी रो और पहली कॉलम 15A 15A माइनस -2 2B, भी। राइट। अब दूसरी रो एंड दूसरी कॉलम 6 प्लस 3 9 प्लस 4। हाँ 9 + 4 राइट। अब दोनों साइड इक्वल है तो कंपेयर करके इक्वेशन बना दो। देखो पहला इक्वेशन कौन सा आएगा, 10A प्लस 3B बराबर 25A स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, बराबर है। यस सर। अब दूसरा इक्वेशन लिखो, 0 इक्वल टू 15A माइनस हाँ वो भी आता है, वो मैं तीसरा मैंने बनाया है। दूसरा कौन सा बनाया है वो देखो, वो 3B प्लस 10A बराबर 13 बना दिया है, देख 13 लो। है तो दो इक्वेशन, तीन इक्वेशन आया। सर। 13 की वैल्यू उसमें रख देंगे, 25 फर्स्ट वन। अब क्या करना है वो तो बात की बात है, लेकिन 3 हो गया ना। अब देखो, हाँ अब हमको ए और बी निकालना है। 3 में से दूसरा तीसरा बहुत सिंपल है, तो उसमें आगे बढ़ेंगे। जैसे कि मान लो हमको बी इलिमिनेट करना है, तो दूसरे को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, 3 को -3 से मल्टीप्लाई करेंगे और बाद में ऐड कर देंगे, आराम से 6B आ जाएगा। यस सर। कोफिशिएंट तो ऐड हो करने के बाद वो कट हो जाएगा, तो ये मिलेगा कि नहीं। यस सर मिलेगा। हाँ तो अब मल्टीप्लाइंग इक्वेशन 2/2 करते हैं एंड इक्वेशन 3/3 करते 3 हैं हाँ। एंड एडिंग करते हैं। तो अब देखो Yes, sir. आगे इक्वेशन पे नजर रखना है। मैं पहले वाले को 2 से मल्टीप्लाई करता हूँ तो 20A आएगा, और दूसरे को मैंने 3 से मल्टीप्लाई करा तो 45A, तो 20A प्लस 45A मैंने लिखा है, वो देखो बराबर है। यस सर बराबर। फिर 6 भी तो कट हो जाएगा। और दूसरी साइड पे बात करें, 13 को 2 से मल्टीप्लाई करेगा तो 26 आने वाला है, और दूसरे में तो 0 है तो कोई आने वाला नहीं है। अब इसमें से एक की वैल्यू निकाले, तो देखो वो लेफ्ट साइड वाला 65A हुआ, दोनों को मिला लो,
65 हाँ ए सर। बराबर 26 है, तो ए बराबर 26 बाई हाँ वो डिवाइड 65। में गया 20/65। हाँ तो Right, right. 13 से कट हो गया, 2/5 आया, 13 टू Yes, जा sir. ना 13 5 जा हो गया। अब ए की वैल्यू Yes, sir. कहीं पे भी रख दो, मैंने थर्ड में लिख दिया, तो अपने आप बी की वैल्यू मिलेगी 15 इंटू 35 2/5 35 माइनस 5 टू बी आ बराबर गया 6, टू बी बराबर b is 6 equal to 3। आया, बी बराबर Three. 6। ए एंड बी दोनों निकाल दिया, और उसने ए और बी जो दो वैल्यू निकाली ने वो चेक कर लो वहां पे, मैंने नहीं चेक करके बताया, यहाँ आपको चेक करके देख लेना है। तो वो पहला इक्वेशन था वो उसका बैलेंस कर रहा है कि नहीं, जरा पीछे जाने दे भाई। अपनी ए वैल्यू कौन सी आई याद रखो, Two ए by की five. वैल्यू 2/5 एंड 2/5. बी की 3, तो वहां लिख के चेक करना पड़ेगा पहला वाला नंबर में। आया समझ में? Okay. तो मान लो कि Yes, टू sir. बाई फाइव लिखते हैं, लेफ्ट साइड में 2/5 लिखते हैं, तो 5 2 सा 10, तो 2 2 सा 4 हुआ वहां। Yes, sir. फिर बी की जगह 3 लिख दो, तो 3 3 सा 9, 9 प्लस 4 13 हो गया बराबर। Yes, sir. अब राइट साइड हाँ में भी 13 आना चाहिए। चलो ये लिखे 4/5, 4/25 Yes, sir. कहें कि 2/5 लिखना है ना एक ही 25, जगह, 25, तो 25 कट हो गया, तो 4 आया, और बी की जगह 3 है, तो 3 स्क्वायर 9, बोलो 9. 9 प्लस 4 13 हो गया कि नहीं? आ तो गया। यानी कि ये एक वैल्यू करेक्ट है। अभी ए बी का आंसर नहीं देना है, उसने पूछा है देन 5a प्लस बी इज व्हाट, ऐसा कुछ क्वेश्चन है देखो। देन Yes, 5a sir. प्लस बी इक्वल टू, तो वहां पे हम ए की बी की वैल्यू लिख देते हैं, बस वही करना है ना। Okay. तो मैंने लिखा हेंस 5a प्लस बी, 5 इंटू 2/5, 5 कट हो गया, 2 प्लस 3 बराबर 5, तो यहाँ लिखना पड़ेगा आपको करेक्ट ऑप्शन बी है। क्या लिखना बाकी रह गया? करेक्ट ऑप्शन, करेक्ट Okay, ऑप्शन। sir. हाँ तो वो करेक्ट ऑप्शन में यहाँ सुधारता जाता हूँ, लिखता जाता हूँ करेक्ट ऑप्शन बी। चलो हो गया बराबर, सब समझ में आया? Yes, sir. तो बोलो कितना सिंपल था, है ना? Yes. Yes, sir. हाँ अब देखो 8 वाला सम फिर से आ गया, फिर से आ गया। देखो द सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन हैज अ नॉन ट्रिवियल सॉल्यूशन हाँ सर वैसा ही है फॉर ए बी सी डी। ए में लिखा है इनफाइनाइटली सर। मैनी D1 वैल्यूज। D2 D3 पहले से 0 है सर। हाँ तो उसने बहुत सिंपल तरीके से दे दिया, वो 2016 में पूछा गया है जे डबल मीन। तो यहाँ सिर्फ डेल्टा बराबर 0 लेके लैम्बडा की वैल्यू निकालनी है, कुछ करने का नहीं। देखो Yes, इतना sir. आसान हो गया। हाँ तो देखो, इसमें ये 1 पहले वाला जो रो बनेगा 1 y हाँ 1 लैम्बडा, लैम्बडा वाई, लैम्डा और हाँ -1 -1, Minus हाँ 1. फिर लैम्बडा और ये -1 लैम्डा -1 -1, और Lambda minus 1, 1 minus 1 1. माइनस लैम्बडा। मैंने 1 लिख 1 दिया माइनस। इट हैज नॉन ट्रिवियल सॉल्यूशन इफ डेल्टा 0, तो दैट मींस अब डेल्टा फर्स्ट होगा, इक्वल। फर्स्ट एलिमेंट उसको रो कॉलम को छुपा अब देंगे बाकी। अब सिर्फ क्वेश्चन है सिंप्लीफिकेशन का। तो देखो बहुत Yes, शांति से वो कैलकुलेशन करने का है। मैंने 1 इंटू किया, देखो बस सब देखो, सब स्टेप देखने लायक है। -1 इंटू -1 का मतलब प्लस लैम्बडा, फिर -1 प्रोडक्ट होगा लेकिन वो माइनस कहा जाता है, तो प्लस हो गया, लैम्बडा प्लस 1 आया बराबर। चलो दूसरी yes, टर्म sir. मैंने निकाली माइनस लैम्बडा इंटू करके, तो प्रोडक्ट करो, माइनस लैम्बडा इंटू क्या आएगा, तो माइनस लैम्बडा स्क्वायर प्लस 1 ही आएगा। Yes, हाँ sir. सर वही है। फिर वो तीसरी वाली टर्म -1 करके ब्रैकेट में लिखो, फॉरगेट करो रो कॉलम, लैम्डा और प्लस 1। लैम्बडा प्लस 1। तो देखो सभी में से लैम्बडा प्लस 1 कॉमन आ रहा है, कैसे? तो Yes. देखो पहले में तो लैम्बडा प्लस 1 ऑलरेडी है, फिर वहां जो दूसरा टर्म है ने माइनस कॉमन बाहर निकाल दिया, माइनस प्लस कर दिया, बाहर जो माइनस था वो, Yes, sir. और अंदर लैम्बडा स्क्वायर -1 का 2 फैक्टर लिख दिया, लैम्बडा -1 लैम्बडा। लैम्डा प्लस 1 लैम्डा प्लस 1 ये स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। और दूसरी में तो है ही। अगर आप यहाँ, मैंने नहीं देखा होगा शायद, लेकिन जो पहला और तीसरा वर्ड टर्म तो लैम्बडा प्लस 1 ऑपोजिट है, कैंसल ही हो जाएगा। Yes, sir. आगे बढ़ने की जरूरत नहीं। फिर यस भी मैंने लैम्बडा प्लस कॉमन निकाल दिया, बाद में अंदर 1 1 आया, उसको कैंसिल कर दिया, और ये 3 ब्रैकेट Yes. आ गया। देखो लैम्बडा प्लस 1, फिर लैम्बडा इंटू लैम्बडा प्लस 1 बचा ब्रैकेट में, तो इक्वल्स टू 0, तो Yes, sir. 3 वैल्यू आई, एक लैम्बडा -1 आई, एक 0 आई, और एक 1 आई। Yes, sir. अब लैम्बडा हैज एग्जैक्टली 3 वैल्यूज, ऐसा हम आंसर लिख सकते हैं। तो वो Yes, sir. अपना जो करेक्ट ऑप्शन है, देखो अब यहाँ जो करेक्ट ऑप्शन है
वो डी वाला है, जरा चेक कर लो, डी ऑप्शन में लिखा है एग्जैक्टली 3 वैल्यूज ऑफ लैम्बडा। यस सर। देखो सिंपल है कि नहीं, एकदम सिंपल है। बहुत सिंपल है सर, बहुत हाँ, और ये लीनियर इक्वेशन वाला तो आता ही रहता है आपको। थोड़ा जो जो वर्क में करा रहा हूँ वो याद रखने का, मैंने जो अभी अभी नोट्स आपको लिखवाए वो भी याद रखो। मैं भी कलेक्शन करके एक सरस पेज पे लिख के दे दूंगा आपको कि क्या क्या याद रखना है इसमें, बराबर है, हो जाएगा वो तो काम। चलो अब ओके सर। आता है सम नंबर 9। सम नंबर 9, देखो ये भी कितना बढ़िया सम दिया है इसमें। JEE 2017 का सम आया, वो 16 वाला दोनों सम कंप्लीट हो गया। एक हाँ सर। हाँ, एक डिटर्मिनेंट पे था जो लास्ट वाला, और उसके आगे वाला था मैट्रिक्स पे। अब और दो सम आ रहा है 17 वाला। देखो एक सम में, पहला सम है मैट्रिक्स वाला, दूसरा आएगा ऑटोमेटिक डिटर्मिनेंट वाला। तो देखो यहाँ A बराबर मैट्रिक्स 2 - 3 - 4 1। Then question is what? Adjoint of 3a square plus 12a is equal to what? Out of these four options, which one करो? सर इजी है पर सिंपलीफिकेशन ज्यादा है सर। कितना सिंपल देखा दिया, देखो एडजॉइंट लाना है किसका, तो 3a स्क्वायर 3a। प्लस 12a। वो भी सर 2 by 2 का मैट्रिक्स है। हाँ, तो a स्क्वायर तो आराम से मिलेगा, 3a स्क्वायर भी आ जाएगा, 12a ऐड कर दोगे, 12 तो बहुत, हाँ सब कुछ हो जाएगा। देखो लेकिन सब सिर्फ कुछ समझ। गिनना है, आपको प्रोडक्ट आना चाहिए, प्रोडक्ट में गलतियां मत करना। देखो ये सम की बात क्या है, वो चेक करते हैं कि आपको प्रोडक्ट आता है कि नहीं। तो देखो a बराबर 2 - 3 - 4 1, मैं ए पे कैसे निकालता हूँ, दोनों को दो टाइम मैंने लिख दिया, फिर मैंने प्रोडक्ट कर दिया, 2 2 4 प्लस यस सर। 12, पहली रो दूसरे में कॉलम, ऐसा ही है रूल्स, ये याद रखने का है आपको। चलो अभी यस। पहली रो पहले में से, दूसरी में से दूसरी कॉलम लो, तो -6 - 3 आएगा, फिर -4 - 2 -8 -4 आएगा, और तीसरा चौ लास्ट वाला कौन सा आएगा, 4 3 12 एंड +1। तो सब मिला के मैं बता रहा हूँ 16 -9 -12 एंड 13, ये स्क्वायर हो गया आपका। यस सर। अब हमको 3a स्क्वायर चाहिए, तो 3 से मल्टीप्लाई करके लिख 3 से मल्टीप्लाई करा देंगे इसको। 48 -27। ये कैसे देते हैं, ये इसलिए देते हैं, कई बच्चे एक ही रो एक ही कॉलम में प्रोडक्ट कर देते हैं, लेकिन मैट्रिक्स में याद रखना जब हम मल्टीप्लाई करें तो सभी एलिमेंट को मल्टीप्लाई करना है। तो 48 यस। -27 -36 39 ऐसा क्वेश्चन आ गया। अब हमको चाहिए 3a स्क्वायर प्लस 12a, तो 3a स्क्वायर तो आ ही गया है, बैठा ही लिखेंगे, और 12 यस ए सर। तो ए के अंदर 12 मल्टीप्लाई करके लिख देंगे। देखो ऊपर ए दिया है, तो ये, हाँ इसमें 12 से 12 2 24, 12 3 36 -36, फिर होगा -48 एंड फिर होगा 12। एट सबको मिला के मैंने लिख दिया 72 -63 84 51। अब ये आंसर नहीं है, ये आंसर यस मत सर। देखना। अब हमको एडजॉइन एडजॉइंट। निकालना है, तो एडजॉइन में क्या सिंपली है, करने का क्या यस है, सर। वो डायगोनल। पहले प्रिंसिपल डायगोनल का इंटरचेंज कर लो, और वो अपोजिट करके सेकंड लिखो। डायगोनल को अपोजिट साइन कर देंगे। बोलो कितना आसान हो गया, है ना। यस तो सर। इतना सिंपल हुआ सम, कुछ करने का ही नहीं था, ऐसा लग रहा है ना, वो आना है, लगना ही चाहिए आपको भी। Yes sir. हाँ, अब नंबर 10 पे जा रहे हैं हम। If S is the set of distinct values of B for which the following system of linear equation has no solution, has no solution of linear equation। देखो हैज नो सॉल्यूशन करके बताया है। यस सर। हाँ, तो सर इसमें ट्राइवल। इसमें क्या तरीका है वो भी सुन लो बराबर ध्यान से। ये आप लिखो साइड पे। ओके सर। हाँ, लिख रहे हैं ना। जैसे बोलिए। हाँ, पहले तो हाँ सर इक्वेशन, बोलिए। चारों इक्वेशन, तीनों इक्वेशन जो बताए हैं अगले में वही लिखना है। a1x + b1y + c1z = d1, कोई बात नहीं, लिखो।
फिर a2x प्लस b2y प्लस c2z बराबर d2। फिर लिखो तीसरा इक्वेशन a3x प्लस b3y प्लस c3z इक्वल टू d3। यस सर लिख लिए। हाँ, अभी इसमें क्वेश्चन ये है कि हैज नो सॉल्यूशन, कब ये इक्वेशन का सॉल्यूशन नहीं होगा। तो हम बताएंगे, देखो यहाँ नो सॉल्यूशन की बात हो रही है, तो एक तो पता है कि डिटर्मिनेंट अगर जीरो नहीं आएगा तो यूनिक सॉल्यूशन है, आपको ये भी पता है। यहाँ नो सॉल्यूशन है तो डिटर्मिनेंट जो डेल्टा है वो तो जीरो ही होगा, ये एक पहली बात सोच लो। देखो मैं कंडीशन लिखवा देता हूं। हाँ, देखो इफ डेल्टा इक्वल टू जीरो, इफ डेल्टा इक्वल टू जीरो एंड आउट ऑफ, मैंने लिखा ही अंदर, एंड आउट ऑफ डेल्टा वन डेल्टा टू डेल्टा थ्री none of is non-zero, none of is non-zero, then system has no solution. Then system has no solution. ये समझ में ओके आया? चलो अभी हम ये क्वेश्चन में कैसे आगे बढ़ेंगे। अपना डेल्टा तो जीरो होना ही चाहिए, डेल्टा का मतलब डिटर्मिनेंट, कौन सा डिटर्मिनेंट वो भी पता है। तो जरा ऊपर ले लो और देखो वो क्या लिखा है मैंने, ये कंडीशन मैंने जो अभी अभी लिखवाई वो लिखी है। डेल्टा जीरो तो मतलब डिटर्मिनेंट, कौन सा डिटर्मिनेंट, तो इक्वेशन में देख के हम लिख सकते हैं 1 1 1 कोएफिशिएंट वाला डिटर्मिनेंट, 1a1 एंड ab1। AB1 हाँ, अब उसका सिंप्लीफाई करके देखें तो 1 इंटू ब्रैकेट ए माइनस बी, फिर -1 इंटू ब्रैकेट 1 माइनस ए, एंड लास्ट वाला 1 इंटू ब्रैकेट बी माइनस ए स्क्वायर। हो गया बराबर? हाँ, अब Yes, sir. अब Yes, अब sir. अब आप ओपन करके देखोगे तो ए एन ए टू ए हो जाता है, देख लो। फिर माइनस बी एन पीछे आता है प्लस बी, वो कट हो जाता है और माइनस ए स्क्वायर बचा है और -1। देख लो बराबर ध्यान से, ये आपको चेक करना है। ओपन करो, जब ओपन करे तो ये आया ना पहले, तो ये कहाँ पे है, Yes, sir. पीछे है। सेकंड टर्म में भी माइनस माइनस प्लस ये आता है, देखो। तो ये मैंने मिला Yes, लिया sir. 2a, फिर वो माइनस बी वाला है तो उधर लास्ट में प्लस बी है तो वो कट हो जाने Plus B. वाला है, आया। Yes, sir. फिर -1 इंटू Yes. 1 है तो वो -1 भी आएगा, एंड लास्ट में माइनस है स्क्वायर बचा है, तो उसको बराबर ठीक तरीके से लिखे माइनस साइन को निकाल के, तो ए स्क्वायर माइनस 2a प्लस 1 बराबर 0 हो गया क्या नहीं? Yes, sir. हुआ। तो वो हुआ a-1 का परफेक्ट स्क्वायर है, तो a-1 होल स्क्वायर 0, मतलब कि ए की वैल्यू 1 आई। जरा ऊपर जाने दे, ए की वैल्यू 1 आई ऊपर। हाँ, जरा थोड़ा थोड़ा आगे जाने दे, बहुत जरूरी है। अच्छा, अगर हम ए की वैल्यू 1 लिख देते हैं, अपना जो गिवन इक्वेशन 3 इक्वेशन जो दिया है ना, तीनों में जहां जहां पे ए है वहां वहां ए लिखो 1, तो डेल्टा 1 डेल्टा 2 डेल्टा 3 0 आ जाता है। जरा Yes, sir. इक्वेशन पर नजर करो तो मैं बताऊं। हाँ, ये 3 इक्वेशन। चलो ए की जगह 1 लिखते हैं, मान लो कि लिख दिया हमने। हाँ, सबको समझ में आ रहा है ना? चलो एक्स वाली लाइन Yes, sir. ढक दो और डेल्टा 1 निकाल दो। क्या लिखोगे, जरा साइड पे रफ पेज है तो लिखो जरा, और देखो कि पहला एक्स को ढक देता है तो क्या आता है, पहली रो 1 1 1 आएगी कि नहीं? Yes, sir. आएगी। दूसरी रो 1 1 1 ही आएगी कि नहीं? एक ही जगह 1 लिखते हैं हम। Yes. तीसरी रो हाँ। में बी 1 0 आएगा, तो देखो पहली Yes, दो sir. रो इक्वल है तो 0 हो गई कि नहीं इसकी वैल्यू? Yes, sir. Yes, तो sir. ये हो गया। डेल्टा 1 0 हो गया। इसी तरह फिर Yes. y को ढक दो और बाद में लिखो, तो देखो पहली रो 1 1 1, दूसरी रो भी 1 1 1 होगी, तो ये भी 0 होने वाला है ना? तीसरी वाली डेल्टा 3 की बात करें, जेड को 0, जेड को कट कर दो। ये सब चेक करने की भी जरूरत नहीं है, उसने तो बोला है तीनों नॉन जीरो होना चाहिए, तो ये तो दो तो sir. 0 हो गया, तीसरा भी नॉन जीरो ही आता है अगर चेक करने जाओ तो। देखो
और तीसरी वाली जेड ढक देते हैं तो 1 1 1 1 फिर भी 1 1 1 दूसरी रो आ जाती है ना। तो इसीलिए Yes, मैंने sir. वहां डायरेक्ट लिख दिया है। अबे आगे चलो उधर। तो मोर ओवर ए बराबर 1 लिखा है तो डेल्टा 1 डेल्टा 2 डेल्टा 3 जीरो हो जाता है। बट व्हेन ए 1 एंड बी इक्वल टू 1, मान लो कि ए बी 1 ले लिया, फिर मैंने उधर देखा इक्वेशन में, ये अपना दिमाग की कसरत है कि बी जो 1 ले लेंगे तो फर्स्ट टू इक्वेशन बिकम सेम इक्वेशन, फर्स्ट टू इक्वेशन बिकम सेम एंड थर्ड इक्वेशन विल बी डिफरेंट। जरा आप देखें A1 B1 उधर इक्वेशन में नजर करो। इससे क्या होता है मैं बताऊं। इक्वेशन 1 में क्या है, देखो x प्लस वाई प्लस जेड बराबर, वहां तो कोई ए और बी है नहीं, तो वो इक्वेशन नहीं, sir. ऐसा है। अभी दूसरे में मैंने A1 लिख दिया तो x प्लस वाई प्लस जेड बराबर, वो सही में हुआ कि नहीं। Yes, sir. अब तीसरे में मैं लिखने जाता हूं, तीसरा इक्वेशन में, तो ए की जगह 1 और बी की जगह अगर मैं 1 लिखूं तो क्या हुआ, x प्लस वाई प्लस जेड बराबर 0 आया। 0. तो पहला दो सेम है, तीसरा अलग है, तो डेफिनेटली पहले दो में से एक ही इक्वेशन बोला जाएगा, x प्लस वाई प्लस जेड बराबर 1, है Yes, ना। sir. Yes, तो तीसरे में से x प्लस वाई प्लस जेड बराबर 0 है, तो इसमें से कोई सॉल्यूशन मिलने वाला ही नहीं है। आपको पता चल गया कि नहीं। एक में x प्लस वाई प्लस जेड 1 बोल रहा है, दूसरा बोलता है, मतलब कि तीसरा बोलता है कि x प्लस वाई प्लस जेड बराबर 0 है। तो कोई ऐसा एक्स वाई जेड आएगा कि सम भी 1 हो सम भी 0 हो, ऐसा हो ही नहीं नहीं, सकता। तो Sir. इसीलिए हम बोलते हैं देन दे हैव नो सॉल्यूशन। यानी कि तो आपको लोगों को लगा होगा कि मैंने B1 क्यों लिया, इसीलिए लिया कि दोनों इक्वेशन में लेफ्ट साइड वाला पार्ट इक्वल आएगा, तभी मैं आर्ग्यूमेंट करूंगा ना कि भाई मेरे पास x प्लस वाई प्लस जेड बराबर 1 आया है, अभी मैं 1 रखने जा रहा हूँ बी, तो वो भी x प्लस वाई प्लस जेड आता है और इसका तो वैल्यू 0 होता है। वैसा होने वाला yes, नहीं है, sir. इसीलिए मैं बोल सकता हूँ कि देन दे हैव नो सॉल्यूशन। तो बी की वैल्यू Yes, ऐसा दिमाग में से, आइडिया से और तरीके से निकालना पड़ता है। बी की वैल्यू यहाँ से नहीं मिलने वाली, तो मैंने लिख दिया देयरफॉर रिक्वायर्ड वैल्यू ऑफ बी मस्ट बी 1। जो नो सॉल्यूशन चाहिए तो वो 1 ही होना चाहिए। तो इसीलिए सेट एस ऑफ व्हाट, वैल्यूज ऑफ बी, सिंगलटन सेट 1 आएगा। इसका मतलब आंसर सिंगलटन सेट, करेक्ट ऑप्शन ए होगा। Yes, sir. अरे पंकज नहीं कहते। हाँ कर रहा हूँ. अब देख लो आंसर आ रहा है कि नहीं बराबर उधर। Yes, sir. हाँ कितना बढ़िया है, देख लिया। हम्म। Yes, sir. चलो अब हम आज का लास्ट सम कर देते हैं। हाँ Yes, sir. यहां तक का प्रॉब्लम 17 का हुआ। अब आता है JEE मेन 2018 वाला सम, 2018। हाँ ये रहा। इफ डिटर्मिनन x माइनस 4 2x 2x, फिर 2x x माइनस 4 2x, फिर 2x 2x x माइनस 4, उसका राइट साइड में क्या लिखा है देखो बराबर ध्यान से, a प्लस बी एक्स एक ब्रैकेट में, दूसरा ब्रैकेट में x माइनस ए होल स्क्वायर। देन ऑर्डर पेर ए बी, मतलब ए की वैल्यू बी की वैल्यू निकाल के ये पेर ए बी कौन सी आएगी चार में, ऐसा आंसर निकालना है। तो आपको करना क्या है, लेफ्ट हैंड साइड वाला डिटर्मिनेंट का जितना हो सके सिंप्लीफाई करो ऑपरेशन करके, और बाद में उसका भी इसी टाइप का फैक्टर लाओ और दोनों साइड के कंपेयर करो। कंपैरिजन में आपको ए और बी की वैल्यू मिल जाएगी। Yes. जैसे हम पहले ऐसा ही सम आया था। तो इतना आसान तरीका सम है, देखो सॉल्यूशन 9 पेज पे, आगे बढ़ाओ। हाँ अभी मैंने स्टार्ट कर दिया, देखो वो क्वेश्चन सिर्फ फिर से लिखा आपके लिए। डिटर्मिनेंट लेफ्ट वाला बराबर राइट हैंड, ये गिवन है। अब हम सिर्फ लेफ्ट हैंड साइड का डिटर्मिनेंट पकड़ते हैं और उसका सिंप्लीफाई करते हैं ऑपरेशन करके। देखो क्या किया मैंने, पहला ऑपरेशन तो मैंने निकाला R1 माइनस R2, ऐसा कर दिया। रो पहली है इसमें से सेकंड रो को कट किया। तो आप कट करोगे, आप अपना दिमाग दौड़ाओ, क्या कट करोगे तो क्या आएगा। तो x माइनस 4 में से माइनस 2x होगा तो माइनस x माइनस 4 ही आएगा, पता चल गया सबको। Yes, sir. Yes, sir. चलो 2x दूसरी एलिमेंट, 2x में से x माइनस 4 निकालोगे तो x प्लस 4 आएगा, आ जा रहा है। Hmm.
और 2x माइनस 2x वो तो 0 ही है। Yes, sir. Yes. अब मैं दूसरी रो में से तीसरी रो को कट कर रहा हूँ। मैंने बाद साइड पे वो बताया भी है सिंबॉलिकली, वो देख सकते हैं। Yes, sir. तो 2x माइनस 2x 0 होगा, फिर x माइनस 4 में से कट किया 2x तो माइनस x माइनस 4 होगा, फिर 2x में से x माइनस 4 फिर से कट किया तो x प्लस 4 हुआ, और तीसरी वाली रो सेम होगी, है ना? बढ़िया। यस सर, एकदम बढ़िया। अच्छा, हाँ, अब आप देखो पहली रो में और दूसरी रो में x प्लस को आराम से कॉमन निकाल सकते हैं। पहली रो में x प्लस 4 मैंने कॉमन निकाल दिया, तो Yes, क्या sir. बचेगा? पहले में -1, दूसरे में 1 और तीसरे में 1 0। और 0. हाँ, और तीसरी रो में से भी कॉमन निकाल दिया, 0 Yes, sir. -1 1 Minus तीसरी रो वैसी की वैसी रहेगी। जरा आगे Yes, sir. बढ़ाओ भाई, बोलना पड़ता है। नहीं सर, बढ़ा ही रहा था। अच्छा अच्छा, अब देखो x प्लस 4 होल स्क्वायर बाहर है, और मैंने एक और ऑपरेशन कर दिया। क्या किया वो देखो, मैंने Yes. C2 में C1 ऐड कर दिया, यानी कि कॉलम 2 में कॉलम 1 ऐड कर दिया, ताकि दूसरा एक 0 मिल जाए। तो मैंने Yes, क्या sir. बताया? देखो -1 0 2x पहली कॉलम ऐसी रही, मैंने हाँ। ऐड किया तो पहला एलिमेंट 0 आया, फिर -1 में 0 ऐड करेगा तो कोई चेंज नहीं होने वाला, लेकिन अब चेंज हो जाएगा, 2x में 2x मिला दोगे तो 4x हो जाएगा। बाकी सब ऐसा Yes. रखा, तीसरी कॉलम में कोई चेंज नहीं है। फिर से एक ऑपरेशन किया, फिर एक -1 + 1 आता है, तो थर्ड कॉलम में सेकंड कॉलम में ऐड करने जा रहा हूं। देखो पहली कॉलम एज इट इज, थर्ड कॉलम को ऐड करो सेकंड में, तो 0 + 0 0, -1 + 1 Yes. 0, एंड x माइनस 4 ऐड करोगे तो 5x माइनस 4 है आ जाएगा। देखो बराबर ध्यान से। Yes, यस sir. अब हम प्रोडक्ट करने जाए तो देखो क्या होगा, x प्लस 4 होल स्क्वायर आउटसाइड एज इट इज है, फिर मैंने -1 इंटू करके देखा तो वो 0 होगा, Yes, sir. माइनस ऑफ 5x माइनस 4 होगा नहीं? नहीं, यस सर, Hmm. तो बाहर का माइनस प्लस हो गया, सर ऊपर जाने दे। हाँ, तो आया क्या, x प्लस 4 होल स्क्वायर एंड 5x माइनस 4 आया। Minus 4. अब Yes, आपको sir. जो दिया गया है वो मैंने राइट हैंड साइड लिया, जो ये अभी अभी हमने राइट हैंड साइड लाया वो राइट हैंड साइड ये होनी थी, x माइनस ए होल स्क्वायर ए प्लस बी एक्स। तो कैसे होगा? कंपैरिजन कर लो, स्क्वायर वाला टर्म से कंपेयर करोगे तो 4 बराबर -a दिखाई देगा कि नहीं आपको? Yes, यस sir. सर, दिखाई देगा. और b वाला टर्म 5 दिखता है, 5x है, इसमें bx है, तो 5 बराबर b है, और ए Yes, की sir. जगह -4 लिखे तो बैलेंस भी हो गया। तो इसका मतलब ए बी हमने निकाल दिया -4 5। देखा Yes, sir. कितना यस सर, आसान है, -4 5। मजे की Yes, बात sir. है कि इसमें कुछ कैलकुलेशन ही है थोड़ा सा, तो वो करेक्ट ऑप्शन डी हो गया। इसमें आपको दो बेनिफिट है भाई। एक तो क्या है कि ये JEE वाला सम आप देखोगे, आप सुनोगे, एक्स्ट्रा सम तरीके से भी काम में लगेगा, अपना बोर्ड की एग्जाम में भी उसका यूज हो रहा है, कि Yes, आपका sir. काम है ही बोर्ड का भी, तो उसमें आपकी थोड़ी मास्टरी बढ़ेगी। अभी जब हम आप बोर्ड का चैप्टर जो करने जाओगे तो थोड़ा आसान लगने लगेगा, यस सर, यही है। तो इसीलिए मैं बार बार बोल रहा हूँ कि जो मैंने दिया है सम, उसका कैलकुलेशन सब कुछ फिर से एक दफे कर लेना, नोटबुक तो जरूर बनाना, जहां भी बाकी है तो एक हाँ तो पता है, हाँ कंप्लीट करते पीजी पर रहो। करनी है जस्ट। हाँ, Okay, सभी sir. नोट देखो, यहाँ ये बोर्ड की जो मैं नोट बताता हूँ वहां भी करने का, ये भी करने का, तभी तो काम बनेगा ना। अच्छा, दूसरी Hmm. बात ये एक एडवाइस ये दे रहा हूँ कि वो जो मैंने पिछले टाइम जो पंकज ने भेजा है उसका सॉल्यूशन रिलेशन एंड फंक्शन का, सब बच्चे वो भेजे हैं, तब अच्छा रहेगा, आपको प्रैक्टिस में जरा मदद मिलेगी, आइडिया भी आएगी कुछ ना कुछ। હા સર, મેં જોયું નથી એટલે યાદ નથી हाँ, આવતું. तो देख लेना, बराबर है। ओके, યસ સર, थैंक यू ऑल, कल मिलते हैं फिर। થેન્ક યુ સર, कल भी બાય मेरा ही Okay, sir. Bye. बाय 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 बाय। સર.